सभी को नमस्कार। I welcome you all in your fourth webinar of your study circle. And today topic we have amendment in Companies Act and relaxation given by MCA due to this COVID-19 and the exposure in MSME. And for covering all this topic, we have very young and energetic and expert speaker CS Devesh Goyal ji is with us. And Goyal Saab has joined first time in your meeting, so it is my duty to give a brief introduction of Devesh ji. Devesh ji is a member of Institute of Company Secretary of India, having rich experience in legal and secretarial matters. He is a young and energetic practicing company secretary with zeal to dig deep into the science of corporate laws. Being a researcher at heart, he has done rigorous research and has written various articles on Companies Act 2013. His articles have been published in ICSI magazines and popular at various professional websites. He has also deliberated various forms on company law and allied matters. He has also co-authored various publications of ICSI, including company law premier books. एंड देवेश जी के बारे में मैं एक दो बात और बता दूं आपको कि देवेश जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे देवेश जी बड़ी लेटेस्ट अमेंडमेंट जो कंपनीज एक्ट की हैं वो वीडियो डालते हैं उस पे, और जो कंपनीज एक्ट के बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उस पे भी डेलिब्रेशन डालते रहते हैं वीडियो अपनी। एंड अनदर वन इज देवेश जी एक चैनल चलाते हैं टेलीग्राम चैनल्स फॉर अपडेटिंग द नॉलेज ऑफ ऑल द प्रोफेशनल सीए सीएस कंपनी सेक्रेटरीज एंड मोर देन 1500 members are associated with this telegram. So with these words, I welcome again Devesh ji in your study circle meeting and request you to please start today deliberation. Over to Devesh ji, please. Sir, unmute कर लिया देवेश जी। देवेश जी unmute कर लें एक बार। Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much for the brief introduction and your kind words. As you said, this first time I'm here with the West Delhi Study Circle. So definitely it's my pleasure to attend this study circle meeting as a speaker. And the best thing of this COVID-19 is these webinars. And you people are doing a lot for the professional by these webinars, so that people, professionals are sitting at their home and their office. They are learning a lot of new things through these webinars. So I would like to thanks to you, Rakesh ji, and West Delhi Study Circle and Pramod sir for the opportunity given to me today for this session. As you already tell about my YouTube channel and Telegram, so the only motto you are serving the profession by these webinars, by conducting the webinar through the study circle. I'm just trying to serve the profession, whether it is a chartered accountant or company secretary, whatever knowledge I learned in last 6 years or 7 years through this profession. Because as now we all are living in the era of amendments. अब चाहे GST की बात करो या किसी कंपनी लॉ की बात करो, किसी भी एक्ट की बात करो, on the regular basis there are a lot of amendments are coming in each and every act. अब उन amendment के साथ अगर हमें काम करना है तो there is the only things about that कि we have to cope up with all the amendments. तो इतनी सारी amendments like as a chartered accountant, you all are the chartered accountant attending here. So there are a lot of things. GST अपना अलग work है, income tax भी चल रहा है, company law चल रहा है, IBC is also there. So sometimes it is very difficult कि सभी acts के amendments को हम याद रख पाए या सभी acts के amendment at least क्या आए हैं उनके बारे में हम knowledge देख पाए. So I think these webinars are the best platform for all these things. At our office and our homes we are getting all the information about the new amendments and new things are coming. As same like the GST Act on the regular basis, there are the amendment in the GST. Same is going on with the Companies Act. As we always say, till this is 2020, still we call it as a new Companies Act 2013. Already 7-year-old हो चुका है. Still we are calling it as a new Companies Act. जो मेरा कंसर्न है कि हम इस एक्ट को अभी भी न्यू कंपनीज एक्ट बोलते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब से ये एक्ट आया है 7 ईयर से सिर्फ अमेंडमेंट्स आ रहे हैं. ऑन द रेगुलर बेसिस वी आर सीइंग कि अमेंडमेंट आ रहे हैं. जनरली अपने सेमिनार्स में एक चीज मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे किसी क्लाइंट का आज कोई काम करना है तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला ये काम होता है कि एमसी चेक कर लो कि इस प्रोविजन में कोई अमेंडमेंट तो नहीं आ गया है. तो दिस इज द स्पीड ऑफ द अमेंडमेंट ऑन द रेगुलर बेसिस. किस स्पीड से अमेंडमेंट्स चल रहे हैं.
तो इसके पीछे अब रीजन क्या है कि रेगुलर अमेंडमेंट्स का कुछ अर्लियर देयर वाज अ रीजन फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ. नाउ COVID-19 is going on. We know the lockdown situation was there since 23rd March 2020. और इस लॉकडाउन पीरियड में भी मिनिस्ट्री ने काफी सारे सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू किए हैं. द मेजर रीजन, द मेजर पर्पस बिहाइंड दो सर्कुलर, दो नोटिफिकेशन, तो सबसे मेन रीजन था उनका to provide relaxation to the corporate. Because last 3 months की अगर हम बात करते हैं 3 to 4 months की, every working, every industry and corporate is affected by this COVID-19. So it is not possible for companies कि हम इस लॉकडाउन पीरियड में या इस COVID-19 पीरियड में हम अपनी बोर्ड मीटिंग्स कॉल करें या जनरल मीटिंग्स कॉल करें या ऑफिस जाके कंपनी के कंप्लायंसेस करें. तो रिगार्डिंग दिस मिनिस्ट्री ने काफी सारे रिलैक्सेशन नोटिस इशू किए और टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री इशू करती जा रही है नोटिस. इज नथिंग लाइक कि मिनिस्ट्री ने स्टार्टिंग में इशू किया, अब कोई रिलैक्सेशन नहीं आ रहे हैं. स्टिल ऑन द रेगुलर बेसिस मिनिस्ट्री इज ट्राइंग कि कोई ना कोई रिलैक्सेशन रेगुलर बेसिस पे मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहे हैं. as I'm just showing on the screen कि क्या क्या amendments आए हैं ना brief, तो हम डिस्कस तो डेफिनेटली डिटेल में करेंगे. अब रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि कितने सारे रिलैक्सेशन विच आई एम कवरिंग. यहाँ पे नोटिफिकेशन है. फर्स्ट 30 मार्च को आया CFSS स्कीम आई. देन 19 मार्च को बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी. 24 मार्च को फिर बोर्ड मीटिंग के प्रोविजन में अगेन दे केम विद सम रिलैक्सेशन. 8 अप्रैल को EGM और EGM से रिलेटेड प्रोविजन में अमेंडमेंट किया. देन जिन कंपनीज के फाइनेंशियल ईयर डिफरेंस है उनका कैसे EGM होगा, all those provisions they are amending to these amendments. As generally हम बोलते हैं कि पहले तो जब तक COVID-19 जैसा कुछ नहीं था, we all are habitual कि हम सेमिनार्स में जाते हैं, सेमिनार्स में जाके चीज डिस्कस करते हैं, वहाँ पे लर्न करते हैं. बट अब वो सिनेरियो तो कंप्लीटली चेंज हो चुका है. आजकल हम सेमिनार्स की जगह टोटली वी आर डिपेंडिंग ऑन द वेबिनार्स. तो वो जो जनरली एक लाइन बोलते हैं ना कि नीड के कारण हमें नई इन्वेंट हम कर लेते हैं. तो ड्यू टू द नीड थी नॉलेज की, तो हम लोगों ने वेबिनार की तरफ मूव ऑन किया. जनरली आज से पहले अगर हम कंपनीज एक्ट में बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कंसेप्ट तो 2013 से है. बट जनरली जब भी हम बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते थे तो हमेशा ये रहता था कि नहीं यार फिजिकल बोर्ड मीटिंग कर लेते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा, कैसे रिकॉर्डिंग्स होगी. बट इस लास्ट 4 मंथ में I must say कि each and every professional is having the knowledge कि कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग्स होती है, कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो COVID-19 ने नो डाउट हमें बहुत कुछ न्यू सिखाया भी है. हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले. वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ दिस वीडियो मीटिंग, बट वी केम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एंड वी आर डूइंग दिस. एंड इसी का इफेक्ट है कि हम डिफरेंट प्लेसेस पे बैठे हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं. As we can see, there are the 30-40 members have already joined. So all people are sitting at the different location, but we can interact with them due to this COVID-19. So let's start with the discussion on the relaxation under Companies Act 2013. अब काफी सारी रिलैक्सेशन आई है, जैसे मैंने स्क्रीन पे डेट्स दिखाई थी. तो सिंस जब से ये COVID-19 या लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तभी से मिनिस्ट्री रेगुलर बेस पे कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर रही है. इन अमेंडमेंट में जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट मिनिस्ट्री ने या सबसे बड़ा रिलैक्सेशन जो मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया, दैट वाज ऑन CFSS, कंपनी लॉ प्रेस सेटलमेंट स्कीम. 30th March 2020 मिनिस्ट्री हैव इशूड अ सर्कुलर. 30th March को सर्कुलर इशू हुआ. अकॉर्डिंग टू दैट सर्कुलर मिनिस्ट्री केम विद अ स्कीम. दैट स्कीम इज कॉल्ड एज अ कंपनी लॉ प्रेस सेटलमेंट स्कीम. As this scheme, I must say कि according to my experience, according to my knowledge of the corporate law, this scheme is giving the biggest relaxation under Companies Act till now. Schemes पहले भी बहुत सारी आती थी, schemes पहले भी आई है मिनिस्ट्री की, but this time this company law press settlement scheme, this scheme is giving a lot of relaxation to the corporate. And as I said, I can say these are the biggest relaxation given by ministry till since Companies Act 1956 to till date. 70 years में अगर मिनिस्ट्री ने जो सबसे बड़ी रिलैक्सेशन दी है इस CFSS. As we know, last 4-5 सालों में मिनिस्ट्री became very strict about the provision of the compliances. Last 5 सालों में मिनिस्ट्री ने काफी सारी कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ किया. Last 5 years, ministry have disqualified lot of directors. तो मिनिस्ट्री
जनरली जो लास्ट 5 ईयर 7 ईयर पहले जो आरओसी का इमेज था, जो कंपनी लोग का इमेज था, दैट इज ड्रास्टिकली चेंज इन लास्ट 7 ईयर। तो जो लास्ट 7 ईयर में कंपनीज ने कोई नॉन कंप्लायंसेस किए हैं, लास्ट 7 ईयर में कंपनीज ने जो कंप्लायंसेस को नहीं कर पाई है या डिले किए हैं, उन सभी के लिए ये स्कीम बहुत बेनिफिशियल स्कीम है। बिकॉज एज वी ऑल आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हियर, we are having lot of corporates clients with us. Many of us we are working with the corporates also in a such senior position. So definitely if we are aware about this scheme, we can guide our clients also ki how can they can get the benefit of the scheme. So let's start with the scheme. First of all, this scheme will be called as a CFSS, Company Law Fresh Settlement Scheme. This scheme passed on the 30th March 2020. As we can see, name से कुछ difference लगता है, Company Law Fresh Settlement Scheme. Fresh Settlement Scheme जो ये word है Fresh Settlement, Fresh Settlement word से लगता है कि they are giving an opportunity एक आपको सेटल करने के लिए, एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए एज अ जर्नी ऑफ अ कंपनी. तो दिस स्कीम इज अ फ्रेश सेटलमेंट स्कीम. Now the question that they have mentioned in the CFSS scheme itself, sorry, purpose of the scheme is to provide chance to the defaulting companies to make their default good. इस स्कीम का पर्पस ही मिनिस्ट्री का लाने का ये था और स्कीम में स्पेसिफिकली मेंशन किया है, द पर्पस ऑफ द स्कीम इज टू गिव एन चांस टू द डिफॉल्टिंग कंपनीज टू मेक देयर डिफॉल्ट गुड. तो डिफॉल्टिंग कंपनी को एक चांस दे रहे हैं कि आपने जो डिफॉल्ट किए हैं उसको मेक गुड कर लो और एक फ्रेश स्टार्ट कर लो कंपनी का. तो कोविड-19 के कारण मिनिस्ट्री ने ऑल ओवर कंट्री, थ्रू आउट कंट्री कंपनीज को एक अपॉर्चुनिटी दी है. इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिस स्कीम, दिस कंपनी लॉ फ्रेश सेटलमेंट स्कीम व्हिच इज आई एम सेइंग अ बिगेस्ट स्कीम, ये स्कीम किस टाइप की कंपनीज पे एप्लीकेबल होती है? whether it is applicable on all OPC, whether it is applicable on small company, private, public or listed, किस कंपनी पे स्कीम एप्लीकेबल होती है? तो मिनिस्ट्री इज वेरी फेयर with this scheme. According to them, this scheme is applicable on each and every company. Each and every company having active status. So this scheme is applicable on OPC, small company, private company, public company, listed company, Nidhi, producer company, Section 8 company, whatever type of companies we are having. Every company is part of this scheme. Every company can take benefit from this scheme. The important thing about this scheme, which we have to keep in mind, even I would like to say, which we have to note down, this scheme is available for period from 1st April 2020 to 30th September 2020. So this scheme is available for the period of 6 months. This period is very crucial for us because today it already 29 July. Already 4 months has been passed to this scheme. Now we are remaining with only 2 months. So this scheme started from the 1st April 2020 to 30th September 2020. मिनिस्ट्री ने 6 मंथ के लिए स्कीम लॉन्च की है कि whatever company, whoever company want to take the benefit under this scheme, इस 6 मंथ के अंदर इस स्कीम का बेनिफिट कंपनीज ले सकती है. So as we discussed, the scheme is available for 1st April to 30th September and it is applicable for all companies. But here they have mentioned one exemption. They have mentioned that except 5 type of companies, every company can take benefit of this scheme. अब वो 5 type of companies कौन सी है? Number 1, companies against which order for strike off has already been issued by the registrar of company. तो ऐसी कंपनी जिनको आरओसी ऑलरेडी नोटिस इशू करके स्ट्राइक ऑफ कर चुका है, जिनका स्टेटस अपने रिकॉर्ड में स्ट्राइक ऑफ कर चुका है, नोटिस इशू कर चुका है, उन कंपनीज को इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा. सेकंड, द कंपनीज who themselves has filed the STK2 form for the strike off. As we know, Companies Act Section 248. Section 248 mentioned about the provision of strike off of the company. As per provision of Section 248, if a company want to suo motu strike off, they have to file E-form STK2 with the registrar of company. So ऐसी कंपनीज जो suo motu strike off के लिए STK2 फाइल कर चुकी है आरओसी में,
उन कंपनीज को भी इस स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड, जो कंपनीज ऑलरेडी अमलगमेट हो चुकी है। फोर्थ, जिन कंपनीज का स्टेटस डोरमेंट है। फिफ्थ, वैनिशिंग कंपनीज। अगर इन 5 टाइप की कंपनीज को अगर हम छोड़ देते हैं, बिकॉज इन 5 टाइप की कंपनीज में कंपनीज का स्टेटस एक्टिव नहीं होता है, except these 5 type of companies, every company can take benefit of this scheme. So ये 5 टाइप याद कर लेंगे तो except these 5 everyone is covered. ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, ऐसी कंपनी जिनके लिए STK2 ऑलरेडी फाइल हो चुका है स्ट्राइक ऑफ के लिए, ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी डोरमेंट स्टेटस में है। फोर्थ, जो कंपनी ऑलरेडी अमलगमेट हो चुकी है। फिफ्थ, वैनिशिंग कंपनी। Except these 5 type of companies, every company can say take the benefit of this scheme. As we are discussing on the provision, I would like to say all the participants कि किसी को कोई भी queries है तो आप comment box में mention कर दीजिएगा simultaneously, so that once we will cover one topic, तो उससे related जो भी queries होगी simultaneously हम discuss भी कर सकते हैं. And again I will say this is the biggest scheme from the ministry. अभी last 10 minutes से I'm saying this is the biggest scheme, this is the biggest relief to the companies. This is the question coming in the mind कि ऐसा क्या relief है, कितनी relaxation ministry ने दी है. So let's first discuss the benefit of the scheme, then we will discuss the other part. First benefit of the scheme, if you filing any form after due date under this scheme, you are not required to pay any additional fees. तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें कोई एडिशनल फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। अगर आज की डेट में हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 में हमें एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर फाइल करने पड़ते हैं मिनिस्ट्री में, AOC 4 फॉर्म एंड MGT 7 फॉर्म। अगर हम AOC 4 फॉर्म को या MGT 7 फॉर्म को विद इन ड्यू डेट नहीं फाइल करते हैं, तो मिनिस्ट्री के जो प्रोविजंस है, कंपनी लोग के जो प्रोविजंस है, then there is an additional fees of ₹100 per day for those form. For an example, मैंने 2019 में मेरी AOC 4 की ड्यू डेट थी 30 अक्टूबर। अगर 30 अक्टूबर का AOC 4 मेरा अभी तक पेंडिंग है, ऑलमोस्ट 10 मंथ क्लोज हो गए हैं। 10 मंथ्स मींस 300 डेज। 300 days into 100, 30,000. 30,000 is the additional fees only for the reason कि we are not able to file the form. तो आज की डेट में मिनिस्ट्री ने एडिशनल फीस बहुत इंक्रीज कर दी है। एडिशनल फीस 100 रुपीज पर डे लग रही है फॉर्म पे। तो अगर मेरा कोई फॉर्म 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, तो यू कैन काउंट कि कितनी सारी एडिशनल फीस हमें पे करनी पड़ेगी। तो अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंदर अगर कंपनी अपना पेंडिंग फॉर्म फाइल करती है, तो कोई भी एडिशनल फीस कंपनी को पे नहीं करनी पड़ेगी। सेकंड, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2017 में अमेंडमेंट आया था, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, एंड एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2018। अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डिनेंस, अगर कोई कंपनी फॉर्म फाइल करने में डिले करती है, फॉर एन एग्जांपल MGT 14 एक बहुत छोटा सा फॉर्म होता है जो हम फाइल करते हैं किसी भी रेजोल्यूशन के लिए, वो हमें 30 डेज में ROC में फाइल करना होता है। अगर हम 30 डेज में नहीं करते तो हम एडिशनल फीस पे करते हैं। समटाइम होता है कि एडिशनल फीस पे करना इज नॉट अ बिग टास्क। कितनी एडिशनल फीस? 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, या 3000, 4000, 5000 रुपए एडिशनल फीस दे देंगे AOC 4 MGT 4 पे, और क्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो इट इज नॉट अ टास्क। बट ऑर्डिनेंस 2018 के अकॉर्डिंग अगर कंपनी ड्यू डेट के बाद फॉर्म फाइल करती है, then ROC having power to impose adjudication penalties on such companies. इसका मैं एग्जांपल देता हूं। MGT 14 सेक्शन 117 कहता है कि whenever you are passing a special resolution, company have to file the MGT 14 with the registrar of companies. If company fails to file this MGT 14 within 30 days of passing of resolution, तो आप उसके बाद फाइल कर सकते हो विद एडिशनल फीस। पर अगर आप 30 डेज के बाद फाइल करते हो, तो ROC हैविंग पावर ऑफ द एडजुडिकेशन। यहाँ पावर ऑफ एडजुडिकेशन से मतलब है कि 30 डेज के बाद अगर फाइल करते हो, तो उस सेक्शन की जो पेनल्टी है, एडिशनल फीस मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पेनल्टी ऑफ द सेक्शन, तो ROC वो पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। बिफोर COVID-19 वी हैव फाइल्ड वन MGT 40, 30 डेज में फाइल करना था, बट वी डिलेड एंड फाइल्ड इन द 75 डेज। मिनिस्ट्री ROC हैव इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 1,25,000 just for non filing of a form within due date. अभी हमें लग रहा है कि इट्स नॉट अ रीजन, कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतने पेनल्टीज ROC लगा रहा है,
तो एडजुडिकेशन के प्रोविजन में एक बहुत अच्छा प्रोविजन है कि जो भी एडजुडिकेशन का ऑर्डर पास होगा वो आरओसी को एमसीए की साइट पे अपलोड करना होगा। तो अगर आप लोग एमसीए की साइट ओपन करते हैं, एमसीए की साइट पे लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम आ रहा है एडजुडिकेशन के लिए, आरओसी एडजुडिकेशन ऑर्डर। एज एमसीए की साइट अगर आप ओपन करेंगे, एमसीए की साइट पे होम पेज पे यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है आरओसी एडजुडिकेशन ऑर्डर। इफ यू विल क्लिक ऑन दिस आरओसी एडजुडिकेशन ऑर्डर, पर आरओसी वाइज जो नोटिस जो ऑर्डर्स इशू है, यू कैन फाइंड आउट हियर। हर आरओसी ने अपना ऑर्डर यहाँ पे सेव किया हुआ है। तो अगर आप किसी एक का भी ओपन कर लेते हैं, हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो किसी एक का भी अगर हम ओपन कर लेते हैं, दिस इज अंडर सेक्शन 42 एंड 12। 12 सेक्शन इज फॉर द सेक्शन 12 इज फॉर द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो यहाँ पे सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी का मेंटेन नहीं होगा ऑफिस, तो मिनिस्ट्री है पेनलाइज द कंपनी फॉर द सेम पर्पस। तो ऐसे अगर आप मिनिस्ट्री के साइट पे जाते हैं तो आपको सभी आरओसीज के यहाँ पे ऑर्डर्स मिल जाएंगे, सभी आरओसीज के ऑर्डर है। तो यू कैन चेक दिस ऑर्डर ऑफ द आरओसीज की ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग आरओसी ने कितनी पेनल्टीज इंपोज की है जस्ट की कंपनी टाइम पे फॉर्म फाइल नहीं कर पाई थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीएफएसएस स्कीम, इस सीएफएसएस स्कीम के अकॉर्डिंग अगर मिनिस्ट्री ने कंपनी अपने फॉर्म डीलेड फॉर्म इस स्कीम के अंडर फाइल करती है तो उन पे एडजुडिकेशन की पेनल्टीज भी नहीं लगेगी। तो फर्स्ट रिलैक्सेशन, नो एडिशनल फीस। सेकंड रिलैक्सेशन, नो एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज। तो कंपनी कैन सेव देयर lakhs of rupees by taking benefit of this scheme. थर्ड बेनिफिट ऑफ द स्कीम, आरओसी कोई प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च नहीं करेगा फॉर लेट फाइलिंग ऑफ सच फॉर्म। फोर्थ बेनिफिट, अगर आरओसी ने कोई आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया है, पेनल्टीज इंपोज कर दिया है ड्यू टू रीजन कि आपने कोई फॉर्म नहीं फाइल किया, अगर वो फॉर्म आप इस स्कीम के अंदर फाइल कर देते हैं तो आरओसी शैल विथड्रॉ द प्रोसिक्यूशन, विथड्रॉ द एडजुडिकेशन आल्सो। So this is the reason I was telling that it is the biggest scheme, biggest relief given by the ministry. One thing we have to be very clear, this scheme is only for delay filing of forms. ये स्कीम सिर्फ फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स के लिए एप्लीकेबल होती है, अदर नॉन कंप्लायंसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर कंपनी ने कोई फॉर्म डिले फाइल किया है, ड्यू डेट के बाद इस स्कीम में फाइल किया है तो स्कीम के बेनिफिट मिलेंगे। बट कंपनी ने फॉर्म फाइलिंग के अलावा कोई और नॉन कंप्लायंस किया है तो स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लाइक एग्जांपल एओसी 4, हम लोग एओसी 4 फॉर्म फाइल करते हैं फॉर सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। एओसी 4 सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होता है। लास्ट ईयर का एओसी 4 मेरा पेंडिंग था 2019 का, मैं स्कीम में फाइल करता हूं, मैं फाइल कर सकता हूं, मेरे ऊपर कोई एडिशनल फीस, मेरे ऊपर कोई एडजुडिकेशन, मेरे ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं लगेगी। बट उस फॉर्म में हम एजीएम की डेट लिखते हैं और लास्ट ईयर हमने एजीएम टाइम पे नहीं की थी, 30 सितंबर की जगह फॉर एग्जांपल 30 अक्टूबर को एजीएम की थी, और उसका फॉर्म अब हम स्कीम में फाइल करते हैं तो हमें रिलैक्सेशन सिर्फ फॉर्म फाइलिंग की मिल रही है, हमें एजीएम का जो हमने नॉन कंप्लायंस किया उसकी रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, दिस स्कीम इज ओनली फॉर लेट फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स। एक्सेप्ट लेट फाइलिंग ऑफ फॉर्म, कोई भी अगर नॉन कंप्लायंस किया है, कोई भी ऑफेंस किया है तो ये स्कीम आपको सेव नहीं करेगी। तो स्कीम सिर्फ सेव करेगी हमें डिले फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स के लिए। तो आई एम जस्ट रिपीटिंग इन टू 1 मिनट, ये स्कीम 5 टाइप की कंपनीज पे अवेलेबल नहीं होगी जो ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, जो एसटीके 2 फॉर्म फाइल कर चुकी है, जिनका स्टेटस डोरमेंट है, और फोर्थ वीकेंड से जो वैनिशिंग कंपनीज है, और फिफ्थ ऐसी जो अमलमेंट हो चुकी है। इन 5 कंपनीज को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जिन कंपनीज को मिलेगा वो क्या बेनिफिट मिलेगा, नो एडिशनल फीस, नो एडजुडिकेशन, नो प्रोसिक्यूशन, तीनों चीजों से कंपनी सेफ रहेगी अंडर दिस स्कीम। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। Or one most important thing which I have discussed, that this scheme is only for late filing of forms. This scheme is not saving any company from the other non-compliances of the Act. Now we will discuss this scheme in the form of the question answer, because then we can get the clarity. First question, whether this scheme is applicable only on the annual forms or other forms also.
देखो जब भी हम स्कीम के डिस्कस करते हैं लास्ट ईयर अटेंडिंग द सेशन, तो आप लोगों ने 1956 में भी वर्क किया है, 2013 में भी वर्क किया है। 1956 में भी मिनिस्ट्री स्कीम्स लेके आती थी, 2013 में भी मिनिस्ट्री स्कीम्स लेके आई थी, बट अभी तक जब भी स्कीम्स आती थी ना, बेनिफिट्स होता था, स्कीम में रिलैक्सेशन होती थी सिर्फ एनुअल फॉर्म्स के लिए, कि आप एनुअल फॉर्म्स फाइल कर सकते हो आफ्टर ड्यू डेट, या एक साथ 5 सालों के एनुअल फॉर्म फाइल कर दो, आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। बट इस स्कीम में, अंडर दिस स्कीम दे केम विद कि आपको सिर्फ एनुअल फॉर्म फाइल करने से रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, आपको और भी बहुत सारे फॉर्म से रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो दे हैव गिवन द लिस्ट ऑफ 76 फॉर्म, 76 फॉर्म की लिस्ट पब्लिश किया उन्होंने, जिसकी हमें बेनिफिट मिल जाएगा अंडर दिस। सो अंडर दिस स्कीम एज मिनिस्ट्री की साइट पे अगर आप देखेंगे तो होम पेज पे मिनिस्ट्री की साइट पे लेफ्ट हैंड साइड में इट इज मेंशन हियर लिस्ट ऑफ द फॉर्म एलिजिबल फॉर एडिशनल फीस वेवर अंडर कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम। तो यहाँ पे उन्होंने फॉर्म्स की लिस्ट पब्लिश कर दी है, क्योंकि फॉर्म्स की लिस्ट में दे हैव मेंशन almost 76 forms, almost 76 forms are there in the list of the form CFSS. There are the 76 forms, 78 forms, sorry, which ministry has given relaxation to the corporates कि आप इस स्कीम में इन 78 फॉर्म को फाइल करके अपने एडिशनल फीस सेव कर सकते हो, अपनी एडजुडिकेशन सेव कर सकते हो। तो दिस स्कीम इज नॉट ओनली फॉर द एनुअल फाइलिंग फॉर्म, दिस स्कीम इज फॉर द ऑल टाइप ऑफ फॉर्म एक्सेप्ट 2 टाइप ऑफ फॉर्म। जो ये 78 फॉर्म्स की लिस्ट है, इसमें 2 फॉर्म्स को इन्होंने कवर नहीं किया है। फर्स्ट SF7 फाइल फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। Second, forms relating to the charges, charge creation, charge modification, charge satisfaction. Except these 2 type of forms, इन 2 टाइप के फॉर्म्स को छोड़ के बाकी सभी फॉर्म्स को मिनिस्ट्री ने स्कीम में कवर किया है। तो अगर इन 2 फॉर्म्स को छोड़ देते हैं, पहला है SF7, SF7 फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल। SF7 को स्कीम से बाहर रखने का रीजन ये है, SS7 पे ना कंपनीज को जो फीस ऑफ फॉर्म पे करनी पड़ती है, दैट इज चार्जेस फ्रॉम द सेपरेट प्रोसेस, लाइक आप कितनी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी पड़ती है। और चार्ज के केस में क्या है, चार्ज के फॉर्म ऐसे फॉर्म है, चार्ज क्रिएशन और चार्ज मॉडिफिकेशन, कंपनी लोगों के ये 2 ऐसे फॉर्म्स है जो बहुत रेयर टाइम के लिए आप फाइल कर सकते हो, लाइक 120 दिन के बाद फाइल ही नहीं कर सकते, तो उनके लिए फीसिस का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। इसलिए मिनिस्ट्री ने इन 2 फॉर्म्स को तो स्कीम से बाहर रख दिया है, एक्सेप्ट दिस ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ द कंपनीज एक्ट पार्ट ऑफ दिस स्कीम। इन 2 फॉर्म्स को छोड़ के बाकी सभी फॉर्म कंपनीज एक्ट के फॉर्म स्कीम का पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस कर रहा था कि कौन कौन से फॉर्म्स के लिए हम स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, तो दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ फॉर्म एक्सेप्ट 2 टाइप ऑफ फॉर्म। तो अगर 2 को याद रख लेंगे तो उसको छोड़ के सभी के लिए स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, अब जो स्कीम में हम फॉर्म्स फाइल कर सकते हैं विदाउट एडिशनल फीस, अपने डिफॉल्ट मेक गुड कर सकते हैं, हाउ ओल्ड फॉर्म्स वी कैन फाइल अंडर दिस स्कीम। क्या हम सिर्फ 2 साल पुराने फॉर्म तक फाइल कर सकते हैं, 5 साल पुराने, या फिर सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 में जो हमें डिफॉल्ट की हैं वो फॉर्म फाइल कर सकते हैं। So for that purpose, they have specifically mentioned in the scheme, इस scheme में company can file their all pending forms. कंपनी अपने सारे पेंडिंग फॉर्म्स को इस स्कीम में फाइल कर सकती है। all pending forms n number of years. आज मुझे 2010 का 2005 का कोई फॉर्म फाइल करना है, मेरा 2005 का कोई फॉर्म पेंडिंग था एनुअल फाइलिंग का ही, तो मैं आज की डेट में फाइल कर सकता हूँ इस स्कीम में, और मुझे कोई एडिशनल फीस पे नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। तो दिस वाज द रीजन कि आई वाज टेलिंग दिस इज द बिगेस्ट स्कीम। सभी फॉर्म्स को कवर कर लिया है, सभी ईयर्स को कवर कर लिया है। अब 1956 में एक्ट आया था, तब से लेके आज तक का कोई भी फॉर्म फाइल करना चाहते हो आप इस स्कीम में फाइल करो, आपको कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी, आपको कोई एडजुडिकेशन या पेनल्टी इम्पोज नहीं होगी आरओसी की तरफ से। But we have to keep in mind as a professional, this scheme is available till 30th September only. So there are only 2 more months.
So you have to plan if you are giving the benefits to any clients of this scheme. So you have to take action immediately and you have to file and complete all the pending filing in next 2 months. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभी हमने डिस्कस किया था इन स्टार्टिंग कि ये स्कीम किस किस टाइप की कंपनीज के लिए अवेलेबल है. देयर वी हैव डिस्कस कि दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपनीज. सभी टाइप ऑफ कंपनीज को स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा एक्सेप्ट 5 वो हमने डिस्कस कर लिया था. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट whether foreign companies can take benefit of this scheme. Before going to answer this question, we have to understand what is the meaning of foreign company. Foreign company का मीन क्या है? क्या फॉरेन कंपनी से यहाँ मतलब है कि एक फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी या फॉरेन कंपनी की होली ओन सब्सिडरी, या मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट? तो जब हम फॉरेन कंपनी की बात करते हैं, फॉरेन कंपनीज एक्ट में जहां भी वर्ड यूज होता है तो फॉरेन कंपनीज का मीन्स होता है ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस. तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज के, बहुत सारी एमएनसीज के ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस ओपन है. तो दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर द ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस एंड लाइसेंस ऑफिस आल्सो. अब जनरली क्या है, जैसे हम कंपनीज, नॉर्मल कंपनीज के लिए एवरी ईयर 2 फॉर्म जरूर फाइल करते हैं, एओसी 4 एंड एनटीटी 7. ऐसे ही फॉरेन कंपनीज के लिए हम एवरी ईयर 2 फॉर्म फाइल करते हैं, एफसी 3 एंड एफसी 4. एक एनुअल रिटर्न होती है, दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जनरल कंपनीज के केस में तो आरओसी की फीस है 200, 300 रुपए, 400, 500, 600 मैक्सिमम. फॉरेन कंपनीज के केस में जो एफसी 3 और एफसी 4 फाइल होता है, वहां नॉर्मल फीस है 6000 रुपीज. 6000 रुपीज तो नॉर्मल फीस है फॉर्म फाइल करने की. अगर आप ड्यू डेट में नहीं फाइल करते हो तो एडिशनल फीस बढ़ती जाएगी 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम और मैक्सिमम 13 टाइम. तो अगर मेरा कोई फॉरेन कंपनी है, मेरा कोई क्लाइंट है जो उसका ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में है, उसका कोई FC3 या FC4 पेंडिंग है, तो 300 डेज के बाद 13 टाइम फीस लगती है. 6000 वाले फॉर्म की 78,000 रुपीज हमें फीस पे करनी पड़ती है. तो अगर ऐसा कोई क्लाइंट है, ऐसा कोई फॉरेन कंपनी है, वो लोग भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी एडिशनल फीस सेव करके सिर्फ 6000 रुपीज में फॉर्म फाइल कर सकते हैं. इवन FC4 के केस में तो और भी ज्यादा फीस है. FC4 की एक्चुअल फीस है, नॉर्मल फीस इज 12,000. अब 12,000 इंटू 13 करते हैं, इट इज मोर देन 1.5 लाख. तो एक फॉर्म फाइल करने के लिए जिसकी 12,000 फीस थी, जस्ट बिकॉज की फॉर्म फाइल करने से डिले कर दिया, उसके ऊपर एडिशनल फीस 1.5 लाख रुपए तक की आ रही है. सो ऐसे जो भी कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज जिनके ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस इंडिया में है, वी शुड मेक देम अवेयर कि वो इस स्कीम का बेनिफिट लें. इस स्कीम में बेनिफिट लेके अगर वो अपने फॉर्म्स फाइल कर देते हैं तो सिर्फ नॉर्मल फीस पे करनी पड़ेगी, लैक्स ऑफ रुपीज एडिशनल फीस वो अपनी सेव कर सकते हैं अंडर दिस स्कीम. So this scheme is completely available for the foreign companies also. Next question आता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि स्कीम सभी फॉर्म्स के लिए एक्सेप्ट 2 टाइप ऑफ फॉर्म, पर इस स्कीम का एक और एक्सेप्शन एक और है. MGT 14 की हम बात करते हैं कि MGT 14 फाइल करना होता है 30 डेज में रेजोल्यूशन पास करने के. MGT 14 के केस में ये सेक्शन स्कीम क्या बोलती है कि अगर आपका MGT 14 300 दिन तक का डिले है तो आप स्कीम में फाइल कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो. बट अगर आपका MGT 14 300 डेज से ज्यादा डिले है, देन यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम. 300 डेज से ज्यादा डिले है तो इस स्कीम में यू कैन नॉट फाइल द MGT 14. आपको पहले उस MGT 14 के लिए कंडोनेशन करवाना पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन अराइज, हु इज हैविंग पावर टू कंडोन MGT 14? पावर ऑफ कंडोनेशन ऑफ MGT 14 is vested with the central government. Here central government means Ministry of Corporate Affairs, because Companies Act में जनरली क्या होता है कि मोस्टली काम या तो आरओसी के पास होते हैं या आरडी के पास, इन दोनों के पास नहीं होते तो एनसीएलटी के पास. But there is one more authority we should always remember, Ministry of Corporate Affairs. We call it as a central government. Ministry of Corporate Affairs के पास पावर है MGT 14 को कंट्रोल करने. तो अगर कोई MGT 14 आप इस स्कीम में फाइल करना चाहते हो, वो 300 दिन से डिलेड है, तो पहले तो आपको उसको कंडोन करवाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से. कंडोन करवाने के लिए आपको एक CG1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा.
उस CG1 फॉर्म में आपको एक एप्लीकेशन अटैच करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन जैसे हम जर्नली कंडोनेशन की एप्लीकेशन बनाते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं, एवरीथिंग। आफ्टर द फाइलिंग ऑफ CG1 विद एप्लीकेशन, मिनिस्ट्री उसको कंडोन करेगा, उसको कंडोनेशन पेनल्टीज लगाएगा या कंडोनेशन फीस चार्ज करेगा। अगर आपका कंडोनेशन 30 सितंबर से पहले हो जाता है और 30 सितंबर से पहले कंडोनेशन का ऑर्डर आ जाता है, फिर तो आप इस MJD 14 को इस स्कीम में फाइल करके एडिशनल पीसी सेव कर सकते हो। और अगर 30 सितंबर से पहले नहीं आता, फिर तो आपको बेनिफिट स्कीम का नहीं। तो MJD 14 एक एक्सेप्शन है स्कीम का, स्कीम में कहीं लिखा नहीं है, बट जब प्रैक्टिकली हम वर्क करने लगते हैं तो MJD 14 इज द एक्सेप्शन। अब क्वेश्चन आता है, एज वी आर अवेयर, लास्ट 4-5 सालों में मिनिस्ट्री ने बहुत सारी कंपनी को स्ट्राइक आउट किया है, एंड आई कैन से अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 लाख डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया। और डिस्क्वालीफाई का रीजन क्या था कि वो डायरेक्टर जिस कंपनीज में थे, that those companies has not filed their financial statement or annual return for 3 financial years। डिस्क्वालिफिकेशन करने का रीजन तो यही था कि 3 सालों से उन कंपनीज ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किए हैं और एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किए। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट इस स्कीम में हम कितना भी पुराना एनुअल फॉर्म, एनुअल रिटर्न, कोई और फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अगर इस स्कीम में मैं अपनी सारी पुरानी एनुअल फाइलिंग्स कंप्लीट कर देता हूं, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर कैन बी रिमूव? जब अगर मैं स्कीम में सब कुछ फाइल कर दूंगा, तो क्या डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो जाएगी? इस स्कीम में फॉर्म फाइल करके क्या मैं डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करवा सकता हूँ? माय आंसर विल बी नो, बिकॉज कंपनीज एक्ट में किसी भी अथॉरिटी के पास पावर ही नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन करने की। कंपनीज एक्ट में कौन कौन सी अथॉरिटी होती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रीजनल डायरेक्टर, NCLT, MCA। all these authorities don't have any power to remove the disqualification of director। तो जब इन अथॉरिटीज के पास पावर ही नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करने की, तो ये अथॉरिटीज डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव नहीं कर सकती है। अब जनरली सम प्रोफेशनल विल से कि द पावर इज विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से हम डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करवा सकते हैं। देन माय जस्टिफिकेशन विल बी दैट अभी तक किसी भी हाई कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करने का ऑर्डर नहीं पास किया है। हाई कोर्ट ने जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ऑर्डर पास किए हैं, वो सिर्फ इंट्रीम ऑर्डर पास। इंट्रीम ऑर्डर का मीन्स है हाई कोर्ट ने सिर्फ इंट्रीम स्टे दिया है, बिकॉज कुछ प्रोविजंस में ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिला डायरेक्टर्स को, ड्यू टू दैट राइट, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड राइट ऑफ द शेयर डायरेक्टर, हाई कोर्ट ने उन्हें इंट्रीम स्टे दिया है। बट कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो पूरे कंपनीज एक्ट में किसी भी अथॉरिटी के पास पावर नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करने की। तो जब किसी अथॉरिटी के पास पावर है ही नहीं, तो इस स्कीम के थ्रू भी डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव नहीं हो सकती। सो व्हेनेवर यू आर गाइडिंग एनी क्लाइंट कि अपनी पुरानी फाइलिंग पूरी कर दो, यू हैव टू चेक कि उस कंपनी में कोई एक्टिव डायरेक्टर्स भी है या नहीं है। अगर उस कंपनी में एक्टिव डायरेक्टर्स नहीं है, तो पहला काम आपको करना पड़ेगा उस कंपनी में न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है, मेरी प्राइवेट कंपनी है, 2 डायरेक्टर थे, दोनों डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए। जब दोनों डिस्क्वालीफाई हुए तो नए डायरेक्टर में अपॉइंट कैसे करूंगा? तो सेक्शन 167 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 167 बोलता है, इन केस व्हेन ऑल डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज आर डिस्क्वालीफाइड, the power to appoint new director is vested with the promoters of the company। जनरली प्रमोटर्स कौन होते हैं हमारी कंपनी के केस में? शेयर होल्डर्स। तो जहां दोनों डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, वहां शेयर होल्डर्स हमारे रेजोल्यूशन पास करके, शेयर होल्डर्स एक EGM कॉल करके नए 2 डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। शेयर होल्डर EGM करेंगे, नए डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। बट अब उन डायरेक्टर को MC की साइट पे फाइल करने के लिए DSC किसके लगे दिया जाए? तो मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइंस लाया था पीछे कि 167 सेक्शन में अगर डायरेक्टर अपॉइंट करते हो, अगर आपको अपॉइंट कर देते हो, तो अपॉइंट करने के बाद आपको कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ROC में सबमिट करने पड़ेंगे, ऑल द प्रूफ्स ऑफ द मीटिंग एंड देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट। उन प्रूफ्स के बाद ROC बैक हैंड से, ROC अपने बैक हैंड से एक डायरेक्टर, 2 न्यू डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर का नाम MC पे अपडेट कर देगा, ताकि कंपनी उस डायरेक्टर का DSC यूज कर पाए। तो जब एक डायरेक्टर का नाम MC पे अपडेट हो जाएगा, उस डायरेक्टर के DSC से
कंपनी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करने का फॉर्म फाइल करेगी और फिर इन दोनों के डीएससी से कंपनी अपनी एनुअल फाइलिंग को पूरा करेगी। तो कंपनी को ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा अगर कंपनी के दोनों डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है। बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, CFSS स्कीम इज गिविंग अस रिलीफ फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ फॉर्म ओनली। अगर हमारा फॉर्म फाइल करने का डिफॉल्ट है तो हमें स्कीम में बेनिफिट मिलेगा। फॉर्म फाइल करने के अलावा कोई डिफॉल्ट है तो स्कीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस स्कीम में कोई डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी सारे प्रोफेशनल्स ने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कि अब स्ट्राइक ऑफ कंपनी अगर लेना चाहती है बेनिफिट तो क्या कोई वे आउट है? आई विल से देयर इज अ वन वे आउट। That one way out is the section 252 of the Companies Act 2013. As per section 252 of the Companies Act, companies जो strike off हो चुकी है, they can get themselves revived with the NCLT, National Company Law Tribunal. तो जो कंपनी ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है वो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल करके अपने आप को रिवाइव करवा सकती है। अब जब ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल करने की बात आती है फॉर द रिवाइवल, तो कंपनी को एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है रिवाइव करवाने के लिए। वो प्रोसेस कंपनी फॉलो कर सकती है, एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। आफ्टर फाइलिंग ऑफ दिस फॉर्म्स, एनसीएलटी आफ्टर फाइलिंग ऑफ द पिटीशन, एनसीएलटी टेक द हियरिंग्स एंड देन अगर एनसीएलटी सेटिस्फाइड, दे इशू द ऑर्डर फॉर द रिवाइवल ऑफ कंपनी। तो वो रिवाइवल ऑफ कंपनी का एक ऑर्डर इशू कर देगी। उस ऑर्डर के बाद आपकी कंपनी का स्टेटस आरओसी एक्टिव कर देगा फ्रॉम द नॉन एक्टिव स्ट्राइक ऑफ, एंड देन यू आर अलाउड टू फाइल और पेंडिंग फॉर्म अंडर दिस स्कीम एंड यू कैन टेक द बेनिफिट। बट वहां पे अब एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है, जो एज अ प्रोफेशनल आई वुड लाइक टू डिस्कस। रिवाइव एनसीएलटी कर देगा और रिवाइव के बाद आपको स्कीम का बेनिफिट भी मिल जाएगा। पर जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे वो ये है कि रिवाइवल के लिए एनसीएलटी 3 से 4 महीने ले लेता है। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ मंथ ऑफ जुलाई, स्कीम अवेलेबल है ओनली नेक्स्ट 2 मंथ के लिए। तो अगर आप 2 महीनों में अगले नेक्स्ट 2 मंथ पे 30 सितंबर से पहले एनसीएलटी से रिवाइवल का ऑर्डर ले लेते हैं, तब तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा फॉर्म फाइल करने का। अदरवाइज इस स्कीम का कोई बेनिफिट आप नहीं। Same the question is that whether dormant companies can take the benefit. अगर डोरमेंट कंपनीज को बेनिफिट लेना है तो हमें एमएससी फॉर्म है जो उनका, वो फाइल करके अपना स्टेटस एक्टिव करवाना पड़ेगा और उसके बाद एक्टिव स्टेटस होने के बाद दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। ये तो था कंपनीज के फॉर्म। एक लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ने एक न्यू फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। वो न्यू फॉर्म किया था DIR3 केवाईसी ऑफ डायरेक्टर। जब तक वो फॉर्म लॉन्च हुआ था उससे पहले जब भी हम केवाईसी की बात करते थे तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही पर्सन आता था केवाईसी के नाम से, वो होता था बैंक, कि बैंक्स केवाईसी करवाता है। बट मिनिस्ट्री हैव लॉन्च द केवाईसी ऑफ द डायरेक्टर। मिनिस्ट्री ने डायरेक्टर्स का केवाईसी भी लॉन्च कर दिया कि हर डायरेक्टर, हर पर्सन को जिसके पास भी डिन है, एवरी पर्सन हु इज हैविंग अ डिन नंबर, दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल DIR3 केवाईसी every year with the registrar of company till 30th सितंबर। तो DIR3 KYC फाइल करने के लिए कोई फीस नहीं है डिपार्टमेंट की, 0 फीस का चालान जनरेट होता है। बट अगर कंपनी ने विद इन ड्यू डेट DIR3 KYC नहीं फाइल किया तो देयर इज एडिशनल फीस ऑफ ₹5000। एक फॉर्म को टाइम से नहीं फाइल करने की एडिशनल फीस 5000। तो ऐसे किसी भी कंपनी के अगर DIR3 KYC पेंडिंग है जो लास्ट ईयर फाइल नहीं हुए थे, they can take the benefit of this scheme कि वो स्कीम में फाइल करके अपनी 5000 की एडिशनल फीस को सेव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमने स्कीम डिस्कस कर ली, क्या बेनिफिट है डिस्कस कर लिए, किसको अवेलेबल है डिस्कस कर ली, बट स्कीम का बेनिफिट अवेल कैसे करना है? क्या मुझे जब फॉर्म फाइलिंग स्टार्ट करनी है उससे पहले कोई मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेनी पड़ेगी या मिनिस्ट्री को कोई स्पेशल फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? तो आई वुड लाइक टू से आपको स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए अभी कुछ भी नहीं करना है। अभी तो आप अपनी पुरानी फाइलिंग्स करो। आपका जो भी पुराना फॉर्म है 30 सितंबर तक आप फाइल कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, एक DPT3 फॉर्म फाइल करते हैं एवरी ईयर हम। DPT3 की ड्यू डेट थी 30 जून 2020।
अगर 30 जून 2020 तक कंपनी ने DPT3 नहीं फाइल किया, बट वो 30 सितंबर तक कर देते हैं, तो इस स्कीम के अंदर दे आर नॉट लायबल फॉर एनी एडिशनल फीस और पेनल्टी। तो आप 30 सितंबर तक जितने पुराने फॉर्म फाइल करने हैं करो, बट एक चीज याद रखना, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 2021, 1 अक्टूबर से एक न्यू फॉर्म अवेलेबल होगा एमसी की साइट पे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ CFSS फॉर्म। 1 अक्टूबर 20 से 31 मार्च 21 तक मिनिस्ट्री को कंपनीज को वो फॉर्म फाइल करना होगा, CFSS फॉर्म फाइल करना होगा मिनिस्ट्री में, अगर उन्हें इम्यूनिटी चाहिए एडजुडिकेशन से, प्रोसिक्यूशन से। उस CFSS फॉर्म में कंपनी को उन सभी फॉर्म्स के SRN मेंशन करने पड़ेंगे, उन सभी फॉर्म्स के SRN जो भी फॉर्म मिनिस्ट्री ने कंपनी ने इस स्कीम का बेनिफिट लेते हुए विदाउट एडिशनल फीस फाइल किए हैं। So this is the most important thing. Companies have to file CFSS form between 1st October to 31st March. अगर कंपनी CFSS फाइल करने से फेल हो जाती है, तो कंपनीज को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ROC एडजुडिकेशन भी कर सकता है, प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है, और एडिशनल फीसेस भी आपके लिवाई कर सकता है। तो मेक श्योर कि आप जिस भी कंपनी के जितने भी फॉर्म स्कीम फाइल करते हैं बेनिफिट देते हुए, स्कीम खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर इसका CFSS फॉर्म, उन फॉर्म्स का SRN मेंशन करके डेफिनेटली फाइल करें। These all are the benefit of the CFSS scheme, company law fresh settlement scheme. So now I think everyone will agree with me that these are the biggest relaxation given by the ministry till now. इसमें आप कितना भी पुराना फॉर्म फाइल कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म फाइल कर सकते हैं, 2 फॉर्म को छोड़ के, कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी, कोई एडजुडिकेशन नहीं होगा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। So this is actually a big benefit of this scheme which everyone can avail. So I would like to say कि this scheme we have discussed completely. इस स्कीम से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज आप मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में, सो दैट हम उनको टेक अप कर लेंगे। सो जब हमारा दिस वाज द फर्स्ट रिलैक्सेशन, अब इसके अलावा भी रिलैक्सेशन आई। ये तो अभी हमने रिलैक्सेशन डिस्कस की कंपनीज के लिए। मिनिस्ट्री ने सिर्फ कंपनीज को रिलैक्सेशन नहीं दिया, उन्होंने रिलैक्सेशन दी है LLPs को भी। एज वी नो, LLP के केस में भी एवरी ईयर हमें 2 फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, LLP 8 और LLP 11। LLP 11 की ड्यू डेट थी 31 मई। तो जिस भी LLP ने अपने LLP 11 नहीं फाइल किए, फॉर एग्जांपल 31 मई के LLP 11 नहीं फाइल किए, those LLPs can file the form under this CFSS scheme, और उनको कोई एडिशनल फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ जो 50 रुपए की नॉर्मल फीस होती है वही पे करनी पड़ेगी। और सेम लाइक द कंपनीज, LLP के केस में भी LLP का कोई भी फॉर्म अगर पेंडिंग है, कोई भी पुराना फॉर्म LLP का पेंडिंग है, जो 78 फॉर्म की लिस्ट है उसमें वो कवर है, कोई भी पुराना फॉर्म LLP का पेंडिंग है, किसी भी पीरियड का LLP का कोई फॉर्म पेंडिंग है। LLP एक्ट तो आया ही 2008 में है, तो 2008 से लेकर 2020 तक LLP का कोई भी फॉर्म पेंडिंग है, तो इस स्कीम में वो फॉर्म फाइल करके स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्कीम कंपनीज के लिए भी है, स्कीम LLPs के लिए भी है। इवन LLPs को तो स्कीम खत्म होने के बाद कोई CFSS फॉर्म भी फाइल नहीं करना है, ये CFSS फॉर्म फाइल करना सिर्फ कंपनीज के लिए। So this is the first and foremost relaxation given by the ministry on 30th March 2020. जैसे ही COVID-19 लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मिनिस्ट्री ने रिलैक्सेशन दे दिया था। Second relaxation we will discuss about the board meetings. As we know, every company under section 173, every company is required to hold at least 4 board meetings in the financial year, except OPC and small company. OPC and small company को छोड़ के हर कंपनी को फाइनेंशियल ईयर के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग करना मैंडेटरी है। चारों बोर्ड मीटिंग में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है 120 दिन का हो सकता है। अब सिचुएशन ऐसी थी 23 मार्च से ऑलमोस्ट जून मिड तक लॉकडाउन चल रहा था। 24 मार्च से मई एंड तक तो 2 मंथ्स तो कंप्लीटली लॉकडाउन था। अब 2 मंथ जब कंप्लीटली लॉकडाउन था, इट वाज नॉट possible of a person
कि वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करे या एक सिटी से दूसरे सिटी मूव करे, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉर्पोरेट्स की बोर्ड मीटिंग होल्ड कर पाए। बट कंपनी लॉ के प्रोविजन तो कहते हैं कि 120 दिन का मैक्सिमम गैप हो सकता है, मैक्सिमम 120 दिन के गैप में कंपनी को बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ने क्या किया, मिनिस्ट्री ने कुछ रिलैक्सेशन दी, बिकॉज आज के डेट में वी ऑल आर द प्रोफेशनल, हम बहुत सारी कंपनीज देख रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन कि हम आज की डेट में कंपनीज की कोई मीटिंग कर रहे थे और डायरेक्टर्स को बुला सकते हैं। तो उन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया, रिलैक्सेशन दिया बाय इशू अ सर्कुलर ऑन द 24th मार्च 2020। 24th मार्च, लॉकडाउन होते ही अगले दिन ही मिनिस्ट्री ने इस रिलैक्सेशन का नोटिस इशू कर दिया। According to this relaxation, the mandatory requirement of holding of meeting, the mandatory requirement of holding of meeting of board of directors under Companies Act 2013 under section 173 stand extended by 60 days, means मिनिस्ट्री ने वन टाइम रिलैक्सेशन दी कि दो मीटिंग्स के बीच में 120 दिन की जगह 180 दिन का गैप हो सकता है। ये वन टाइम रिलैक्सेशन मिनिस्ट्री ने सभी कंपनीज को दी, एवरी टाइप ऑफ कंपनीज, ओपीसी से लेकर लिस्टेड कंपनीज तक को कंपनी लॉ में ये रिलैक्सेशन मिनिस्ट्री ने दे दी कि जो मैक्सिमम गैप है टू बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज का, उस मैक्सिमम गैप को दे कैन इंक्रीज अप टू 180 डेज फॉर द पीरियड अप्रैल टू सितंबर, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। अब इस नोटिफिकेशन में दो तीन चीजें जो है हमें पॉइंट आउट करने वाली। पहली चीज, ये बेनिफिट, ये रिलैक्सेशन एक ही बार हम यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। एक ही बार हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी बोर्ड मीटिंग में 120 दिन से ज्यादा का गैप हो, बट 180 दिन तक का हो। दूसरा, ये गैप, ये बेनिफिट हम सिर्फ 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में ही बेनिफिट ले सकते हैं, 30 सितंबर के बाद इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कंपनी की लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी 2 जनवरी को, 2 जनवरी 2020, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगी? 120 दिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 1 अप्रैल को होनी चाहिए, और 1 अप्रैल को तो कंट्री में लॉकडाउन चल रहा था, राइट? सॉरी, मई, 1 मई तक होनी चाहिए थी। अगर मेरी लास्ट बोर्ड मीटिंग 2 जनवरी को हुई है तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 120 दिन 1 मई तक होनी चाहिए थी। अब 1 मई को लॉकडाउन था कंट्री में, तो कंपनीज कैसे होल्ड करती? तो यहाँ पे कंपनीज बेनिफिट ले सकती है 180 दिन का। लास्ट बोर्ड मीटिंग 2 जनवरी को हुई, अब नेक्स्ट 180 दिन में कर सकता हूँ, तो मेरा नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो कंपनीज की है वो 30 जून तक कंपनीज अपनी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कर सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2020 में कोई मीटिंग ही नहीं हुई, कंपनी ने लास्ट बोर्ड मीटिंग की थी 24 दिसंबर को। अब 24 दिसंबर को लास्ट बोर्ड मीटिंग की थी, जब 120 दिन पूरे होने को आए तब लॉकडाउन चल रहा था। उस केस में भी यहाँ पे हम 180 दिन अगर काउंट करते हैं तो हमारा बनता है 22 जून। सो इट वाज फिजिबल फॉर द कंपनीज टू होल्ड अ मीटिंग ऑन द 22 जून। So this was the second big relaxation given by the ministry to the corporates due to this COVID-19. अब थर्ड रिलैक्सेशन की बात करते हैं, which is important for all of us because we are the chartered accountant and company secretaries। जो भी थर्ड रिलैक्सेशन हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें सबसे ज्यादा यूज होगी इन द मंथ ऑफ सितंबर, अगस्त एंड सितंबर। As we know, we are in the month of July. Today is 29 July. August and September month chartered accountants के लिए is the most busiest month because अगस्त and September में हमें सारे फाइनेंशियल्स फाइनलाइज करने होते हैं। तो कंपनीज के फाइनेंशियल्स फाइनलाइज होंगे अगस्त और सितंबर के बीच। अब अगस्त और सितंबर में कंपनीज को अपने फाइनेंशियल फाइनलाइज करते हैं, तो वो कंपनीज बोर्ड मीटिंग्स कैसे होल्ड करें? अभी भी इतना तो ओपन नहीं है, कोविड-19 का इम्पैक्ट पूरा है। मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, यहाँ पे कोविड-19 का बहुत इम्पैक्ट है, तो कंपनीज के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बोर्ड मीटिंग्स होल्ड करना। फॉर एन एग्जांपल, मेरी कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं, एक फॉरेन में है, एक दिल्ली में है।
ना तो दिल्ली वाला फॉरेन जा सकता है, फॉरेन वाला दिल्ली आ सकता है, ना ही आएगा। तो इस केस में बोर्ड मीटिंग होल्ड कैसे होगी, बोर्ड मीटिंग कैसे करेंगे हम अगस्त और सितंबर में, फाइनेंशियल्स कैसे अप्रूव करेंगे हम अगस्त और सितंबर मंथ में, बोर्ड मीटिंग पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। तो उस केस में हम यूज करेंगे प्रोविजंस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रोविजंस ऑफ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जब कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस हुआ था, कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस हुआ था 1 अप्रैल 2014 से, ऑलमोस्ट 6.5 ईयर हैज बीन पास्ड। जब कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस हुआ, उस दिन से एक नया प्रोविजन कंपनीज एक्ट में ऐड हुआ। अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन, कंपनीज कैन होल्ड देयर बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आल्सो। तब से अलाउड था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करना, बट जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला 90% कंपनीज ने कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोर्ड मीटिंग नहीं की, because we were not comfortable with the video conferencing board meeting. We don't want to come out from our comfort zone for the video conferencing board meeting. तो 99% इंडिया में कंपनीज की बोर्ड मीटिंग फिजिकली होती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं। तो इस प्रोविजन का हमने ज्यादा यूज किया नहीं, पर दिस इज द टाइम, अब एरा जो हम जी रहे हैं, जो हम इस पीरियड है जो अब अगस्त सितंबर का, इस पीरियड में हमें बहुत सारी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करनी पड़ सकती है। सब rule 3 of the meetings of boards and its power rule 2014। रूल 3 में पूरा प्रोसेस एंड प्रोविजन लिखा है कि कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैसे करेगी। इट इज इजी, अभी भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरा वेबिनार कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग। बट देयर इज अ रूल 4। रूल 4 बोलता है देयर आर द सम मैटर्स which cannot be discussed through meeting through video conferencing। रूल 4 इज सेइंग कि ऐसे कुछ मैटर्स हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग से डिस्कस कर ही नहीं सकते। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला आता है अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू रूल 4 अगर हमें अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अप्रूव ही नहीं कर सकते। Following matters shall not be dealt with in meeting held through video conferencing। तो रूल 4 के अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अप्रूव नहीं कर सकते। सेकंड, बोर्ड रिपोर्ट्स हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अप्रूव नहीं कर सकते। अदर मैटर्स, प्रोस्पेक्टस, ऑडिट मीटिंग, मर्जर डीमर्जर आर ओके। बट अब ये जो दो मैटर है, फर्स्ट 2 मैटर जो मैंने हाईलाइट की हैं, अप्रूवल ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अप्रूवल ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट। अब इन दो मैटर्स के लिए कंपनी कैसे करेगी कि अभी भी, क्योंकि अगस्त और सितंबर इज द मंथ, अगस्त और सितंबर मंथ में अब कंपनी कैसे करेगी इन दो मैटर्स के लिए बोर्ड मीटिंग। एग्जांपल मैं फिर से वही लेके चलता हूँ, मेरी कंपनी एमएनसी है, मेरा एक डायरेक्टर फॉरेन में है, दूसरा डायरेक्टर इंडिया में है, तो डेफिनेटली अभी ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो फिजिकल बोर्ड मीटिंग करें। उनके पास ऑप्शन था बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उनके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग करने का ऑप्शन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग वो करते हैं, तो ये दो एजेंडा नहीं डिस्कस कर सकते। और अभी तो अगस्त और सितंबर तो मंथ ही दो एजेंडास को डिस्कस करने का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में मिनिस्ट्री ने एक रिलैक्सेशन दिया। उस केस में, उस सिनेरियो में मिनिस्ट्री हैज मेंशन दैट 19 मार्च को एक सर्कुलर आया, उसके सिनेरियो के अकॉर्डिंग 30 सितंबर तक अगर कोई भी कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करती है, प्लीज मेंशन द डेट्स। इफ यू आर राइटिंग तो राइट कर लो, नोट कर लो, डेट्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट। अकॉर्डिंग टू दोस 30 सितंबर तक अगर अपनी कोई भी कंपनी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करती है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, व्हाटएवर दे वांट, दे कैन गेट इट अप्रूव्ड। तो ये एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। अदरवाइज इस टाइम हम सभी के पास सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता कि कैसे अपनी बोर्ड मीटिंग्स करें, कैसे फाइनेंशियल अप्रूव करें, कैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट अप्रूव करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू दिस मैटर, दिस रिलैक्सेशन, कंपनीज अगर 30 सितंबर तक बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करना चाहती है तो वो कर सकती है, और उस मीटिंग में वो ऐसे सभी एजेंडा को भी डिस्कस कर सकती है। तो अगस्त और सितंबर में हमारे जितने भी ऐसे आप लोगों के क्लाइंट्स हैं, कंपनीज हैं, जिनके लिए पॉसिबल नहीं है फिजिकल बोर्ड मीटिंग करना, आपको उन सभी को गाइड करना पड़ेगा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थ्रू बोर्ड मीटिंग करें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थ्रू बोर्ड मीटिंग करके उसके अकॉर्डिंग अपने कंप्लायंसेस करें। अब जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थ्रू बोर्ड मीटिंग की बात आती है, तो some person has asked me this question in the group also, WhatsApp group और Telegram group, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव तो करवा लेंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट अप्रूव तो करवा लेंगे, बट साइन कैसे होगा? एक पर्सन यहाँ बैठा, दूसरा पर्सन वहां बैठा, ऑडिटर तीसरे प्लेस पे बैठा। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोर्ड मीटिंग तो हो गई, तो डॉक्यूमेंट बैलेंस शीट साइन कैसे होगी? तो माय आंसर इज वेरी सिंपल आंसर, वी विल गेट इट साइन डिजिटली। डिजिटल सिग्नेचर से, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर डीएससी से हम साइन करवा लेंगे, बिकॉज एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर इज नथिंग एल्स, इट इज जस्ट सिग्नेचर इन द डिजिटली फॉर्म। एक हम हैंड रिटन सिग्नेचर कर रहे हैं, एक डीएससी लगा रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो मैनुअल सिग्नेचर है, वो डिजिटली सिग्नेचर है। तो जितनी वैल्यू हमारे मैनुअल सिग्नेचर की है, उतनी ही वैल्यू हमारे डिजिटल सिग्नेचर की है। तो इस सिनेरियो में आप डिजिटली बैलेंस शीट को भी साइन करवा सकते हैं। अब डिजिटली साइन करवाने में एक क्वेश्चन प्रोफेशनल की तरफ से आता है कि डायरेक्टर के पास डीएससी अवेलेबल नहीं है। डीएससी तो जो इंडिया में डायरेक्टर बैठा उसी के पास है, या सीए के पास है, या सीएस के पास है। तो क्या हम लोग उनका डीएससी लगा सकते हैं? आई विल से नो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कोई भी राइट नहीं देता है किसी पर्सन को दूसरे पर्सन का डीएससी यूज करने के लिए। तो एज अ प्रोफेशनल, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कोई राइट नहीं है मैं किसी दूसरे पर्सन का डीएससी अफिक्स करूं, बिकॉज ये उसका सिग्नेचर है, वही पर्सन अफिक्स कर सकता है। So in that case, I have find out one solution. डीएससी मेरे पास है, मेरे क्लाइंट का, मेरी सेफ कस्टडी में है, बट मैं नहीं फिक्स कर सकता, वही कर सकता है। तो उस केस में मैं उसको एक ये काम कर सकता हूँ कि मैं डीएससी अपने पीसी पे लगा के उसको टीम व्यूअर पे या एनी डेस्क पे अपना सिस्टम दे सकता हूँ, और वो खुद एफिक्स कर सकता है फाइनेंशियल पे, और उसकी मैं कोई रिकॉर्डिंग या कोई उसका प्रूफ रख सकता हूँ कि उस पर्सन, दैट पर्सन हिमसेल्फ हैज साइंड द डॉक्यूमेंट। तो दिस इज द ओनली वे एज ऑन डेट कि जिन कंपनीज के लिए फिजिकल बोर्ड मीटिंग पॉसिबल नहीं है, जिन कंपनी के लिए फिजिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करना पॉसिबल नहीं है, there is a best way for them to sign all documents by digital signature. So through this process, they can complete their annual filings also on time, and their compliance is on time. अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्ड मीटिंग्स में मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्ड मीटिंग में कोई डायरेक्टर क्या टेली कॉन्फ्रेंस से अटेंड कर सकता है? मींस आई एम जस्ट अटेंडिंग बाय टेली कॉन्फ्रेंसिंग, मैं वीडियो नहीं अटेंड कर रहा हूँ, मैंने मीटिंग चल रही है, एक डायरेक्टर को कॉल कर लिया है, उस कॉल के थ्रू मैं मीटिंग सुन रहा हूँ, अपना वोट कर रहा हूँ। तो क्या एक पर्सन टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द रूल 3 ऑफ द मीटिंग्स एंड इट्स बोर्ड पावर रूल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्ड मीटिंग मींस वीडियो प्लस ऑडियो, ऑडियो प्लस वीडियो, विजुअल भी होना चाहिए, ऑडियो भी होना चाहिए। तो ऑडियो प्लस वीडियो बोथ फैसिलिटी शुड बी देयर। तो कोई भी डायरेक्टर सिर्फ टेली कॉन्फ्रेंस से मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं, दे शुड हैव प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। सेकंड, एज पर रूल 3, it is mentioned under rule 3 of meetings and its board power rules 2014 that whenever a company conduct a board meeting through video conferencing, company shall record such meeting। कंपनी को उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग रखना मैंडेटरी है। कंपनी को पूरी बोर्ड मीटिंग रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करके कंपनी को अपने रिकॉर्ड में उस मीटिंग को रखना पड़ेगा। सो ये आल्सो एक टास्क है, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल वी हैव टू गाइड आवर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को हम इतना तो बता देंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लो यार, आप जूम से एक मीटिंग कर लो, बट अदर चीजें भी हमें उन्हें गाइड करनी पड़ेगी। वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि सिर्फ जूम से मीटिंग करना इज नॉट ओके। उनको प्रॉपर मीटिंग करनी पड़ेगी जूम से, उसकी जिस भी एप्लीकेशन से, उसकी एक रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग को रखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग मिनट्स बनेंगे। जैसे एक सिंपल प्रोविजन मैं डिस्कस करता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्ड मीटिंग का एक प्रोविजन है कि जो भी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर रहा है वो रोल कॉल होगा, उसका एक रोल कॉल होगा, वो बताएगा कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से अटेंड कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई और नहीं अटेंड कर रहा है। तो हर वो डायरेक्टर विच इज अटेंडिंग टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसको रोल कॉल करना पड़ेगा। वो रोल कॉल भी हमें बैलेंस शीट्स में मेंशन करना पड़ेगा।
So all these things we have to understand, or all these relaxation we can use for our purpose. फोर्थ रिलैक्सेशन मिनिस्ट्री ने दी एक सर्कुलर पास करके 8 अप्रैल 2020 को, वो थी होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. लीगली स्पीकिंग कंपनीज एक्ट 2013 में या कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था जो ये अलाउ करता था कि आप जनरल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते थे. आप सब कुछ कर सकते थे, बट जनरल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कर सकते थे. ये कहीं भी अलाउड नहीं था कंपनीज एक्ट. बट इस कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए मिनिस्ट्री ने स्टेप लिया कि कंपनीज कैन होल्ड द जनरल मीटिंग आल्सो थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. 8 अप्रैल को एक सर्कुलर पास हुआ, उसके बाद मई में एक सर्कुलर पास हुआ. 8 अप्रैल के सर्कुलर के अकॉर्डिंग कंपनीज कैन होल्ड देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टिल 30th September थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. और अकॉर्डिंग टू May सर्कुलर, companies can hold annual general meeting through video conferencing till 31st December 2020. So these are also very big relaxation. बोर्ड मीटिंग में हमने फाइनेंशियल अप्रूव करा लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, डिजिटली साइन कर लिए. बट अब क्वेश्चन आ रहा था कि एजीएम में कैसे अप्रूव करें. जब बोर्ड मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है तो एजीएम करना कैसे पॉसिबल है. तो दे हैव अलाउड कि आप एजीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हो. आपकी कोई ईजीएम है, कोई एजीएम है, वो भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हो. अब क्वेश्चन आता है एजीएम. प्राइवेट कंपनी तो 2 मेंबर से भी बन जाती है, ओबीसी में एक ही होता है, पब्लिक में मिनिमम 5 चाहिए. लिस्टेड कंपनी में हजारों मेंबर होते हैं, लाखों मेंबर होते हैं. तो ये एजीएम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रोविजन है, क्या ये कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए या सब टाइप ऑफ कंपनीज के लिए? Then my answer will be this provision of holding of annual general meeting through video conferencing, extraordinary general meeting through video conferencing, applicable on each and every type of company. चाहे आप ओबीसी है, स्मॉल कंपनी है, नॉन स्मॉल कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, सभी के ऊपर ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है. निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, जो कंपनी चाहे इस रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेके अपनी जनरल मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होल्ड कर सकती है. इन सभी सर्कुलर में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो करेंसी पीरियड है. लाइक इस ईजीएम के सर्कुलर के अकॉर्डिंग भी ईजीएम आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 30 सितंबर तक कर सकते हैं, एजीएम आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 31 मार्च तक कर सकते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस है चीजों के, व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ठीक है हम ईजीएम और एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं, उनका प्रोसेस क्या होगा. तो प्रोसेस हमें पता है, कोई भी मीटिंग करनी होती है तो सबसे पहला स्टेप है मीटिंग का नोटिस इशू करना. अब नोटिस इशू करते वक्त कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी. नोटिस में आपको सर्कुलर का रेफरेंस देना पड़ेगा. नोटिस में आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि आपके शेयर होल्डर इस मीटिंग को कैसे अटेंड कर सकते हैं. बिकॉज जनरली क्या होता है कि शेयर होल्डर्स we cannot say that every shareholder is educated, he know how to attend the meeting. So you have to give the instruction in the notice how they can attend the meeting. आपको एक ऑथराइज्ड पर्सन का नंबर देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर, जिसको कांटेक्ट कर सकते हैं, जो पर्सन हेल्प करेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड करने में. और अगर कंपनी की वेबसाइट भी है तो ये नोटिस कंपनी की वेबसाइट पे भी पब्लिश होगा. ऐसे ही नोटिस गया, नोटिस के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स मेल के थ्रू जाएंगे. जैसे जब एजीएम के लिए हम फाइनेंशियल भेजते हैं, एनुअल रिपोर्ट भेजते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके मेल के थ्रू सर्कुलेट होंगे. नाउ द क्वेश्चन आता है वोटिंग का. अब वोटिंग कैसे होगी, तो इसमें इन्होंने मेंशन किया, एक तो प्रोसेस है कि आप जनरल मीटिंग का जो नोटिस इशू कर रहे हो, नोटिस में एक ईमेल आईडी दे दो, शेयर होल्डर्स उस ईमेल आईडी पे अपने वोट कास्ट कर देंगे. दूसरा, शेयर होल्डर मीटिंग से पहले उस पर वोट कास्ट कर सकते हैं. शेयर होल्डर उस मेल आईडी पे अपने मेल आईडी पे वोट्स करके होंगे. अब क्वेश्चन आता है कि कंपनी के पास 10 शेयर होल्डर है, लेकिन कंपनी के पास सभी शेयर होल्डर की ईमेल आईडी नहीं है, तो नोटिस कैसे भेजें. उसके लिए मिनिस्ट्री ने मेंशन किया कि अगर कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स की ईमेल आईडी नहीं है, पहला क्वेश्चन प्रोसेस होता है सभी की ईमेल आईडी है तो सभी को नोटिस भेज दो. सेकंड, सभी की ईमेल आईडी नहीं है
लेकिन जिनकी ईमेल आईडी नहीं है उनके कॉन्टैक्ट नंबर है तो उनसे कॉन्टैक्ट करके ईमेल आईडी ले। थर्ड, मैं सभी से कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाया तो ऐसे कुछ शेयर होल्डर रह गए कि जिनकी ईमेल आईडी नहीं है, तो थर्ड स्टेप आपको जो आपका जनरल मीटिंग का नोटिस है पब्लिश करवाना पड़ेगा वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में और इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर। सो दिस प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सभी की मेल आईडी है या नहीं है। एक्सेप्ट दिस, जैसे हम अदर प्रोविजन हमारे होते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, वेबसाइट पे नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा, वो सब चीजें एज इट इज चलेगी। तो अगर आप कोई भी जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करने के लिए आपको रूल 3 ऑफ द मीटिंग्स एंड बोर्ड पावर रूल स्टडी करना पड़ेगा। तो जनरल मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने के लिए पूरा जनरल मीटिंग का जो सर्कुलर आया है 8 अप्रैल और मई, वो आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। सेकंड, कुछ कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च नहीं होकर जनवरी टू दिसंबर होता है। फिफ्थ एग्जामिशन में मिनिस्ट्री ने बोला ऐसी कंपनीज जिनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2019 को ओवर हुआ है, उनकी ड्यू डेट एजीएम होती है 6 मंथ, दैट इज 30 जून। उस केस में ऐसी कंपनीज जिनका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को, सॉरी 31 दिसंबर 2019 को फिनिश हुआ है, उनको रिलैक्सेशन दिया कि आप अपनी एजीएम भी 30 सितंबर तक कर सकते हैं। These all are the relaxation given by the ministry under Companies Act 2013. इस पे किसी के क्वेश्चन है तो you can mention. Otherwise, in next half an hour, we will just discuss something about the MSME also. There are the 3 queries which I am taking up. One query is relating to the whether we have to pass question. One query is relating to the loan to director and the filing of MGD 14. I will take up later on because it's a big query. Other 2 queries are relevant to the today's topic. I am taking that. Please guide when private limited companies has to file MGD 14. Whenever private limited companies passing a special resolution, they have to file the MGD 14. How to avail benefit of the LLP settlement fee 2020 if we file form 3 for amendment in partnership deed LLP. आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी LLP 3 डिलेड है, ड्यू डेट से ज्यादा टाइम हो चुका है, ड्यू डेट निकल चुकी है, जस्ट 30 सितंबर से पहले LLP का फॉर्म फाइल कर दो, आपको कोई एडिशनल फीस नहीं आएगी, सिर्फ नॉर्मल फीस आएगी और आप वो नॉर्मल फीस पे कर सकते हैं। So if anyone still have any query, तो आप लोग अभी भी इसको क्वेश्चंस को मेंशन कर सकते हो। आई एम मूविंग टू माय नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटिंग टू द MSME। MSME is a very hot topic these days because मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी MSMEs को बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए हुए थे एंड आफ्टर दिस आत्मनिर्भर स्कीम के बाद भी मिनिस्ट्री ने बहुत सारे नए रिलैक्सेशन दिए। तो एकदम से बूम आ गया था कि एवरी एंटरप्राइज वांट टू गेट रजिस्टर्ड विद द MSME, एवरी एंटिटी वांट टू गेट रजिस्टर्ड अंडर MSME। उसी के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ने जून 26 2020 को एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसका इफेक्ट हुआ 1 जुलाई 2020 से। तो 26 जून 2020 के नोटिफिकेशन से मिनिस्ट्री ने MSME से रिलेटेड बहुत सारी चीजें चेंज कर दी, लाइक MSME का क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया, क्राइटेरिया चेंज कर दिया टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर कैसे करनी है, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन चेंज कर दिया और MSME का न्यू नेम रख दिया है उद्यम रजिस्ट्रेशन। From 1st July 2020, MSME registration is considered as old as a registration. जब भी हम MSME में रजिस्टर करने की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं कॉमन क्वेश्चन पे जाता हूं। तो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन होता है which type of entity, which type of enterprises can register under MSME। जब हम MSME को रजिस्टर करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली पहला क्वेश्चन माइंड में यही आता है कि MSME में रजिस्टर तो कर लेंगे पर किस टाइप की एंटिटीज MSME में रजिस्टर हो सकती है। तो एज पर MSME एक्ट 2006 and notification dated 26 June, any type of entity, whether it is a proprietorship firm, whether it is a Hindu undivided family, whether it is a private partnership firm, cooperative society, private company, public company, self-help group, LLPs, society, trust, etc. Any type of enterprise can register under MSME.
ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी रजिस्टर हो सकती है या पब्लिक कंपनी रजिस्टर हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलएलपी रजिस्टर हो सकती है, प्रोप्राइटर भी रजिस्टर हो सकती है, सोसाइटी भी रजिस्टर हो सकती है, ट्रस्ट भी रजिस्टर है। तो एनी टाइप ऑफ एंटिटी कैन रजिस्टर अंडर एमएसएमई। ये तो हो गया टाइप ऑफ एंटिटी। सेकंड क्वेश्चन आता है जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रोफेशनल की उस पर क्वेरी आती है, विच टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी एलिजिबल फॉर रजिस्टर अंडर एमएसएमई? कौन सी बिजनेस एंटिटी एमएसएमई में रजिस्टर होने के लिए अलाउड है? विच टाइप ऑफ बिजनेस? तो अकॉर्डिंग टू द 26 जून नोटिफिकेशन ऑन एमएसएमई एक्ट, only the manufacturers and service provider can register under MSME। MSME में सिर्फ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर हो सकते हैं और सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई रजिस्टर नहीं हो सकता। लाइक ट्रेडर्स, ट्रेडर्स आर नॉट अलाउड टू रजिस्टर अंडर MSME। सो अगर आपकी एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विस में है और मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस में है, तो आपकी एंटरप्राइज रजिस्टर हो सकती है MSME में, अदरवाइज योर एंटरप्राइज इज नॉट अलाउड टू रजिस्टर अंडर MSME। इससे रिलेटेड अगर किसी की क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। सो साइमल्टेनियसली जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, आई विल प्रोवाइड। सो सबसे पहला जो मेरा मोस्ट क्रूशियल पॉइंट था कि किस टाइप की एंटिटीज एमएसएमई में रजिस्टर हो सकती है, तो दैट आई हैव डिस्कस्ड कि ऑल टाइप ऑफ एंटिटीज कैन गेट रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ यही एंटिटी हो सकती है, कोई दूसरी एंटिटी नहीं हो सकती है, सभी एंटिटीज हो सकती है। और बिजनेसेस की बात करते हैं तो एंटिटीज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में है, सिर्फ वही रजिस्टर हो सकती है, उसके अलावा रजिस्टर नहीं हो सकती। 1 जुलाई 2020 से, इसी मंथ 1 जुलाई से एमएसएमई का नाम चेंज करके उन्होंने एमएसएमई को उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब एमएसएमई में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एमएसएमई की डेफिनेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन ही डिस्कस करते हैं। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, 1 जुलाई 2020 तक एमएसएमई की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट थी। 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई की डेफिनेशन इज टोटली डिफरेंट। तो अब हम पुरानी डेफिनेशन को तो छोड़ देते हैं, नई डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो जो 26 जून 2020 को जो एमएसएमई का नोटिफिकेशन आया, उसके अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2020 से आपकी एंटिटी, आपकी एंटरप्राइज एमएसएमई में फॉल करती है या नहीं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम में फॉल करती है या नहीं, वो आपको इस डेफिनेशन से देखना पड़ेगा। अभी हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल टेल यू अ ट्रिक कि हमें डेफिनेशन जल्दी याद करनी है, माइंड में रखनी है, तो कैसे करनी है। क्लासिफिकेशन क्या है? अगर आपकी एंटिटी का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इक्विपमेंट इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री एंड टर्नओवर इज अंडर दीज लिमिट्स, देन यू कैन कंसीडर यू आर फॉलिंग अंडर एमएसएमई। आपको देखना पड़ेगा माइक्रो फॉल करते हो, स्मॉल पे फॉल करते हो, मीडियम। फॉर एन एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस, if their investment in plant and machinery or equipment is less than 1 crore and turnover is less than 5 crore, then entity shall be considered as a micro entity। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको चेक करना पड़ेगा आप नई लिमिट्स में कहां फॉल करते हो, और 1 जुलाई के बाद आप एक नई एंटिटी को एमएसएमई में रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको नई डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। If your investment is less than 1 crore and your turnover is less than 5 crore, you will consider as a micro entity. If your investment is less than 10 crore and turnover is less than 50 crore, then you will be considered as a small entity. And if your investment is less than 50 crore and turnover is less than 250 crore, then you will be considered as a medium entity. So this is the criteria for the micro, small and medium. Now, how to learn these limits of the micro, small and medium? आप एक काम कीजिए, सिर्फ ये याद कर लीजिए, माइक्रो के केस में इन्वेस्टमेंट 1 लाख से कम होना चाहिए, 1 करोड़ से, सॉरी। जब इन्वेस्टमेंट से टर्नओवर पे जाएंगे, तीनों कैटेगरीज में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, जब भी इन्वेस्टमेंट से टर्नओवर पे जाएंगे तो टर्नओवर इज 5 टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट। टर्नओवर इज 5 टाइम। यहाँ पे 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, लेस देन 1 करोड़ तो यहाँ 5 करोड़, 10 to 50, 50 to 250। तो इन्वेस्टमेंट से टर्नओवर पे जब भी मूव करेंगे, टर्नओवर इज 5 टाइम्स टू द इन्वेस्टमेंट अंडर दिस
सेकंड, जब माइक्रो से स्मॉल पे मूव करेंगे तो जो माइक्रो की लिमिट्स है उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल से मीडियम पे मूव करेंगे तो जो इसकी लिमिट्स है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज अ वेरी सिंपल क्राइटेरिया। एक और ऑप्शन है, ये याद कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए तो टर्नओवर अपने आप 5 टाइम आ जाएगी। माइक्रो से स्मॉल पे जाएंगे तो इंटू 10, माइक्रो से मीडियम पे जाएंगे तो इंटू 50। If you will learn this formula, then you will never forget the definition of the MSME. Because otherwise, generally क्या रहता है, we can confuse in the definition कि हमें क्या लेना और क्या नहीं लेना। So this is the new definition of registration under MSME. अब मिनिस्ट्री ने जो 26 जून को नोटिफिकेशन दिया उसमें ये नई चीज डाल दी है, ये पहले नहीं थी, री रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। और 26 जून 2020 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी एंटरप्राइजेस ऑलरेडी एमएसएमई में रजिस्टर है, पहले से एमएसएमई में रजिस्टर है, तो भी आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज अ उद्यम रजिस्ट्रेशन। एज आई मेंशन देयर, द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड प्रायर टू 30th June shall continue to be valid only for a period till 31st March 2021। तो जो पुराने रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ 31 मार्च 2021 तक वैलिड है। अगर आपको कंटिन्यू करना है एज अ एमएसएमई तो आपको अगेन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। Such enterprise shall register again with the उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आफ्टर जुलाई। आफ्टर जुलाई हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना पड़ेगा। दिस इज द पोर्टल उद्यम रजिस्ट्रेशन। आई थिंक स्क्रीन इज नॉट शोइंग, लेट मी शो यू। I would request to everyone, जब भी आप एमएसएमई में रजिस्टर करवाने जाएंगे तो उसकी साइट है उद्यम registration.gov.in, msme.gov.org। Okay, right now their site is not working. They have mentioned this message site under updation है। So I would like to say, जब भी आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर करवाएंगे या री रजिस्टर करेंगे, you should use this website. As a professional हम लोग सबसे ज्यादा वेबसाइट यूज करते हैं, तो I would like to say you should use this website only, udyamregistration.gov.in। This is actual government website for the registration of the MSME। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट अगर आप गूगल करते हैं, many websites are there, but actual genuine website of the government is this, udyamregistration.gov.in। तो आप रजिस्टर करते हैं या री रजिस्टर करते हैं तो इस पोर्टल को यूज करिए। सेकंड थिंग, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन की कोई फीसिस नहीं है। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई फीस नहीं है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस व्हिच इज मिनिस्ट्री इज प्रोवाइडिंग। थर्ड थिंग, जब भी आप एमएसएमई में रजिस्टर करवाने जाते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमने डिस्कस कर लिया कि री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सभी ओल्ड एंटिटीज को, फिर हमने डेफिनेशन डिस्कस की। अब आएगा, अब एक क्वेश्चन इज देयर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन, दिस इज द डेफिनेशन। अब मेरी एक एंटिटी है, उसकी इन्वेस्टमेंट तो है 2 करोड़, तो 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट मतलब मैं यहाँ फॉल करूंगा, 1 करोड़ से ज्यादा है। बट उसकी टर्नओवर है 3 करोड़, मतलब मैं यहाँ फॉल करूंगा, 5 करोड़ से ज्यादा है। अब इस केस में मैं अपने आप को माइक्रो मानूंगा या स्मॉल मानूंगा? फॉर एन एग्जांपल, मेरी इन्वेस्टमेंट तो है 5 करोड़, इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ है तो मैं यहाँ फॉल कर रहा हूँ, बट मेरी टर्नओवर है 100 करोड़, जो 50 से ज्यादा है, तो मैं यहाँ फॉल कर रहा हूँ। तो मैं एक तो यहाँ फॉल कर रहा हूँ स्मॉल में, दूसरा फॉल कर रहा हूँ टर्नओवर में, तो व्हाट शुड आई कंसीडर? तो मेरे को मेरी एंटिटी को स्मॉल मानना है या मीडियम मानना है? उसके लिए मिनिस्ट्री ने मेंशन किया, if an enterprise crossing the ceiling limit from its present category in either of the two criteria of the investment or turnover, it will cease to exist in that category and be replaced in the higher category। मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट स्मॉल में फॉल कर रहा है, टर्नओवर मीडियम में, तो मैं हायर कैटेगरी वाला माना जाऊंगा।
always we have to go on the higher category. ऐसा केस होता है कि टर्नओवर 10 करोड़ है, हायर कैटेगरी कौन सी है? देन मिडिल कैटेगरी. Now this is a question many professionals ask this question. क्या MSME registration is a unit wise registration or entity wise registration? So I would like to say MSME registration is a entity wise registration. हमारा यूनिट टू यूनिट पे वेरी नहीं करेगा. एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे जा रहे हैं. एक एंटरप्राइज की फॉर एग्जांपल एक कंपनी की 10 ब्रांचेस है, 10 यूनिट्स है, तो हमें 10 रजिस्ट्रेशन नहीं कराने हैं, हमारा एक ही रजिस्ट्रेशन होगा. You can read this point. In the notification, they have clarified that while calculation the amount of the turnover, investment of all units shall be considered collectively. तो बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन किया जितनी भी यूनिट्स है उन सभी यूनिट की कलेक्टिव टर्नओवर और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ देखनी पड़ेगी. Even all units registered under GST and PAN shall be collectively treated as an enterprise for the purpose. तो वो हमारे जीएसटी और पैन रिकॉर्ड से भी डिपार्टमेंट से भी डाटा मांगेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस चेक करेंगे. तो हमारी ऑल यूनिट शैल बी कंसीडर्ड एज अ वन यूनिट. सो ऑल दिस इज नॉट अ यूनिट वाइज ट्रांजैक्शन, इट इज अ एंटिटी वाइज का रजिस्ट्रेशन. सेकंड क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी. मिनिस्ट्री ने रिसेंटली नोटिफिकेशन में मेंशन किया प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न में जो वैल्यू की होगी उसको मानेंगे. तो उसको देख के ये कंसीडर किया जाएगा कि आपकी कंपनी स्मॉल है, मीडियम है या माइक्रो है या तीनों में नहीं है. तो ऐसे भी केस हो सकते हैं कि कंपनी अभी या एंटिटी अभी नई एंटिटी अभी तक आईटीआर फाइलिंग नहीं की है, उस केस में उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है. आप जो कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करोगे वो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे करना. अपने जो इनवॉइस होंगे प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट के उन इनवॉइसेस को बेस लेके चलना और उस इनवॉइसेस की अमाउंट जो लोगे उसमें जीएसटी को इंक्लूड नहीं करोगे, वो अमाउंट मांगोगे. फिर नेक्स्ट ईयर में जब आपके आईटीआर फाइल हो जाती है फिर आईटीआर में जो अमाउंट लिखोगे उसको कंसीडर किया जाएगा. देन टर्नओवर के केस में दे आर वेरी क्लैरिफाइड. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall be excluded while calculating the turnover. So export of goods and export of services exclude हो जाएगी. Information the turnover related figure of such enterprise which do not have PAN will be considered on the self declaration basis till 31st March. उसके बाद पे पैन और जीएसटी के बेस पे डिस्कशन होगा, वो लिमिट देखी जाएगी. तो 31 मार्च 2020 तक एंटिटी को अपना पैन लेना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा. उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया डिस्कस होगा कि कौन से क्राइटेरिया में कंपनी फॉल कर रही है. अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? जो मैंने पोर्टल बताया था उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, उस पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा. उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in. वहां जाके दो कॉलम होंगे, एक होगा री रजिस्ट्रेशन, एक होगा न्यू रजिस्ट्रेशन. तो जो भी आपका क्राइटेरिया है आपको क्राइटेरिया पे क्लिक करना पड़ेगा. आधार नंबर मेंशन करना पड़ेगा. आधार नंबर मैंडेटरी है. जैसे यहाँ लिखा है प्रोप्राइटर के केस में तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में प्रोप्राइटर का आधार नंबर, पार्टनरशिप फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर का, एचयूएफ के केस में कर्ता का, कंपनी और एलएलपी के केस में, सोसाइटीज के केस में आपके पास आधार नंबर होगा आपके डायरेक्टर्स का और प्राइस सिग्नेचरी का. तो वो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा. आधार नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा. वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी. So these all are the things about the MSMEs and the latest relaxation given to the corporates under COVID-19. यहाँ पे मेरे पास एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले उनको टेकअप कर लेता हूँ. Someone said कि अगर हम एडिशनल फीस के लिए चेक करते हैं इंक्वायरी फीस के सॉफ्टवेयर में जाके तो एडिशनल फीस दिखा रहा है. तो आई वुड लाइक टू से हियर कि अगर आप इंक्वायरी फीस में जाके चेक करेंगे तो वहां पे एडिशनल फीस दिखा रहा है क्योंकि इंक्वायरी फीस का सॉफ्टवेयर उन्होंने स्कीम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया. तो अगर इस स्कीम में कोई फॉर्म फाइल कर रहे हो तो इंक्वायरी फीस को भूल जाओ, इंक्वायरी फीस के सॉफ्टवेयर को भूल जाओ. आप फॉर्म फाइल करके देखो आपकी कोई एडिशनल फीस नहीं आएगी. So these all are the provisions relating to the MSME and the relaxation given to the ministry by the Ministry under Companies Act 2013. Now, if anyone having any query, we can discuss here in the next 10 minutes.
सर अगर किसी मेंबर की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। एक क्वेरी और यहाँ मेंशन की हुई है, वन ऑफ माय क्लाइंट हैज मिसप्लेस्ड द उद्योग आधार सर्टिफिकेट एंड द उद्योग आधार वेबसाइट इज नॉट ऑपरेटिव नाउ, व्हाट्स द रेमेडी अवेलेबल टू हिम टू गेट द कॉपी ऑफ आरसी? I think you have to approach to the department only for the copy of the RC because उनकी साइट पे तो कोई प्रोसेस नहीं दिया है कि डुप्लीकेट कॉपी कैसे इशू होगी। तो आई थिंक फिजिकली आपको एक बार विजिट करके यू हैव टू कांटेक्ट टू द डिपार्टमेंट। सो ऑल दिस रिलैक्सेशन, ऑल दिस एमएसएमई का भी बिल्कुल सिनेरियो जब से ये नया नोटिफिकेशन आया 26 जून का पूरा चेंज हो गया है। पहले एमएसएमई के बारे में कोई इतना जानता ही नहीं था। सबसे ज्यादा तो एमएसएमई के बारे में लोगों में अवेयरनेस आई जब लास्ट ईयर एमएसएमई 1 फॉर्म आया। एमएसएमई एक्ट 2006 में आया था, बट एमएसएमई 1 फॉर्म जब लास्ट ईयर कंपनीज के लिए आया उसके बाद से सब प्रोफेशनल जरूर अवेयर हो गया कि एमएसएमई एक्ट क्या है। जब 2006 में आया था, छोटा सा 20 सेक्शन का एक्ट है, बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट एवरीवन इज अवेयर कि एमएसएमई एक्ट क्या है, क्योंकि अब कंपनीज को एवरी हाफ ईयर में एक एमएसएमई फॉर्म फाइल करना पड़ रहा है और उसमें ऑडिटर से सारी डिटेल्स को लेनी पड़ रही है। उसके बाद अभी रिसेंटली आत्मनिर्भर स्कीम में बहुत सारे रिलैक्सेशन दे दिए और 26 जून के नोटिफिकेशन से तो पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है, डेफिनेशन चेंज कर दी, क्लासिफिकेशन चेंज कर दिए, कैलकुलेशन ऑफ द टर्नओवर, कैलकुलेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, सबको बहुत क्लैरिफाई कर दिया और सब चीजों को बिल्कुल चेंज कर दिया। So I think I have taken all the questions and discuss everything. Now it's on you कि अगर आप लोगों की कोई भी query है तो I'm open. एक query और आई हुई है जो इससे related नहीं है, फिर भी still I'm discussing here. If private limited companies give loan to other group company with same director and shareholder exceeding more than share capital reserve and capital, say give loans of 30 lakh when both the company share capital 10 lakh, whether we have to pass special resolution? पहली चीज, और जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है तो सेक्शन 185 ट्रिगर होता है। सेक्शन 185 सबसेक्शन 12 बोलता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन नहीं दे सकती अगर कॉमन डायरेक्टर है, बट सबसेक्शन 2 बोलता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे सकती है, कॉमन डायरेक्टर है, बट उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो आपके जो केस है, आपके कॉमन डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी को आप दे रहे हो, तो सबसेक्शन वो सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा और पास करने के 30 डेज में एमडीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। और जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, एमडीटी 14 फाइल करेगा, ये लेंडर कंपनी को करना पड़ेगा, बोरोवर को नहीं करना। देवेश जी। हाँ जी सर। सर एक चीज बताएं, जो आप एमएसएमई में कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो आईटीआर फॉर्म से ले लेंगे। यस सर। बट सर आईटीआर फॉर्म जैसे मान लो सपोज कोई प्रीएम्प्टिव टैक्सेशन फाइल करता है, वो आईटीआर 4 फॉर्म होता है उसके लिए, उसमें तो इन्वेस्टमेंट डिटेल जाती नहीं, कोई भी डिटेल। सर उस केस में ये सेल्फ डिक्लेरेशन पे लेंगे। अच्छा, सेल्फ डिक्लेरेशन से लेंगे सर। उसमें एक क्वेरी और रहेगी, उसमें नेट वैल्यू जाती है, डब्ल्यूडीवी जाती है। डब्ल्यूडीवी लेंगे सर, डब्ल्यूडीवी लेंगे, पहले ग्रोस लेते थे। ये पिछले ना 15 सालों से कंफ्यूजन थी कि नेट वैल्यू ले या डब्ल्यूडीवी ले, तो इन्होंने बोला जहाँ पे रिटर्न पे जा रही है हम रिटर्न से वैल्यू ले लेंगे, और दूसरी केस में आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन पे लेंगे डब्ल्यूडीवी पे। और इन्होंने ये भी लिख दिया कि अगर इनवॉइसेस की जो अमाउंट है उस बेस पे लेते हो तो जीएसटी एक्सक्लूड करके आपको लेना है उसको। तो काफी क्लैरिफाई किया है 26 जून के सर्कुलर में, इन्होंने बहुत चीजों पे क्लैरिफाई किया है। जो पहले छोटी छोटी हमें कंफ्यूजन रहती थी उनको बहुत क्लैरिफाई किया है। इवन एक डाउट तो अभी भी चल रहा है, जो क्वेश्चन है मिनिस्ट्री के पास पेंडिंग है, अभी इन्होंने ये मेंशन किया है कि आपको जीएसटी नंबर मैंडेटरी होगा। पर जीएसटी नंबर कैसे मैंडेटरी होगा? जीएसटी नंबर तो अभी जनरली देखते तो 20 लाख प्लस वाले के लिए होता है, पर ये बोल रहे हैं एमएसएमई के लिए होगा। लेट्स सी, अभी उन्होंने बोला है कि 31 मार्च 21 तक तो विदाउट जीएसटी चल सकता है, तो आई थिंक तब तक अमेंडमेंट ऐसा कुछ नहीं आएंगे कि जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल है सिर्फ उसी को जीएसटी नंबर देना, अदरवाइज नहीं देना है। Someone has mentioned, can you share the write up of MSME FAQ? Rakesh ji, I will share with you this write up of the MSME, so you can share with the participants. जी 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 सर। Any members query sir? If as discussed by the Rakesh ji, कि हमारा मेरा एक पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर किसी का वेबिनार के बाद भी कोई क्वेरीज है तो वी आर ओपन टू डिस्कस द क्वेरीज। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया, तो यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर द क्वेरीज आल्सो। तो आप पिंग कर देंगे तो व्हेनेवर आई गेट टाइम आई विल जस्ट रिप्लाई द क्वेरीज। गगन जी आपका क्वेश्चन है कोई? या देवेश जी। हाँ जी सर।
हाँ, गुड इवनिंग सर। देवेश जी, एक क्वेश्चन है। एक्सपोर्टर्स को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है बैंकर से, ओके दैट इज, एंड एमएसएमई में अगर है तो 5% मिलता है, अगर हायर स्केल में है तो 3% मिलता है। ठीक है सर। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम ये कहीं क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता कि कितना इन्वेस्टमेंट है, and whatever is being applied you get the registration. राइट। तो सर अभी तक ऐसा था ना, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की जब बात कर रहे हैं, जो कि हम लिख देते थे वो अमाउंट मान ली जाती थी। जी जी जी। और कोई क्राइटेरिया ही नहीं था इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। इसीलिए इस बार उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अगर अभी तक आपकी आईटीआर नहीं फाइल हुई है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन दो। आईटीआर फाइल है तो जो आईटीआर में वैल्यू है वो वैल्यू हम आप लिखो। अगर आप कुछ डिफरेंट वैल्यू लिखते हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन कंप्लायंस बिकॉज दे आर अटैचिंग देयर सॉफ्टवेयर विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आल्सो। तो वहां से वो डाटा लेके दे विल क्रॉस चेक दैट। नहीं, आईटीआर तो ठीक है, बट अगर हमारी क्लासिफिकेशन ही गलत हो जाती है अगर सर्टिफिकेट में, हाँ जी। तो तो सर्टिफिकेट में भी सर इन्होंने एक प्रोसेस और किया है कि सर्टिफिकेट में हमारी क्लासिफिकेशन गलत हो गई, आपने माइक्रो कर दी, हमारी मीडियम है, हाँ, तो आपको इसका चेंज करने का भी क्राइटेरिया साइट पे मेंशन कर दिया है कि आप वहां से अपनी क्लासिफिकेशन भी चेंज करवा लीजिए। नहीं तो वॉलंटरी है ना, दिस इज ओनली वॉलंटरी नाउ। तो वॉलंटरी है, अगर आप नहीं करवाते तो फिर यू आर लाइबल। नहीं करवाते तो यू विल बी कंसीडर कि आप एक्स्ट्रा एडवांटेज ले रहे हो, आप लाइबल हो। बिकॉज इन्होंने स्पेसिफिकली 26 जून के नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन द क्लासिफिकेशन वी आर टेकिंग द डाटा फ्रॉम द आईटीआर एंड जीएसटी, अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेक दैट। टर्नओवर तो जीएसटीआर से मैच हो जाएगा। आई जस्ट शेयरिंग वन स्क्रीन, एक पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं इसके लिए। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एन एंटरप्राइज हैविंग उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर शैल अपडेट इट्स इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इन द पोर्टल इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ आईटीआर जीएसटी such other additional information required based on the information furnished or gathered from the government sources including ITR GST the classification of enterprise will be updated। आपने नहीं अपडेट किया तो ये लोग तो अभी ऐसा भी मेंशन कर रहे हैं कि हम सेल्फ अपडेट कर देंगे आपके पैन से और जीएसटी से आपका डाटा लेके। और वो कितना करते हैं वो प्रैक्टिकल थिंग है, बट दे हैव मेंशन दैट। any penal consequences are there अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन देता तो? सर एक्चुअली देखो, अभी इन्होंने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है कि कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, बस एक पॉइंट पे इन्होंने मेंशन किया है कि हाँ 26 जून के नोटिफिकेशन में है, कॉन्सिक्वेंसेस भी मेंशन किए हैं। अभी मेरे पास कॉपी नहीं है, आप 26 जून का एमएसएमई का नोटिफिकेशन देखिएगा, लास्ट में पेनल्टीज भी मेंशन किए हैं लोगों ने इस बार। वो सेम है, वो पेनल्टी whoever intentionally misinterpret or attempt to suppress the self-declared facts or figures appearing in the Udyam registration updation process shall be liable for penalty as specified under section 27 of the MSME Act। So section 27 of MSME 2006 के अकॉर्डिंग आपको पेनल्टी इम्पोज, वो 1000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में है वो। तो वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, पेनल्टीज याद नहीं है। 1000 से 10,000 के बीच में है। ओके, that was there earlier also या अभी ऐड हुआ सर पेनल्टी? एक बात बताऊं, ये पॉइंट ऐड कर दिया। नहीं गगनदीप जी, देवेश भाई, जो एमएसएमई एक्ट 2006 है ना, वो 2006 से आज तक कभी अमेंड नहीं हुआ। राइट सर, बिल्कुल आज तक भी अमेंड नहीं हुआ, सिर्फ नोटिफिकेशन अमेंड किए। हाँ, वो नोटिफिकेशन से ही काम चला रहे हैं आज तक। अब एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं है। राइट सर। सर एक चीज और बताइए, इसमें हमें कुछ हाफ ईयरली या एनुअली रिटर्न भी फाइल करनी जरूरी है इफ वी आर रजिस्टर्ड इन एमएसएमई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। There is no requirement of filing any annual return or half yearly return? सिर्फ कंपनी के केस में है कि कंपनी रजिस्टर है तो एमएसएमई 1 फॉर्म हाफ ईयरली फाइल करना है, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू। वो रिक्वायरमेंट तो आरओसी की रिक्वायरमेंट है ना सर, एमएसएमई अभी भी आरओसी की रिक्वायरमेंट है, वो भी अभी लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई है, पहले तो वो भी नहीं थी। जी। सो राकेश जी, आई थिंक ऑल द क्वेरीज वी हैव टेकन। मुझे 6 o'clock के और मीटिंग अटेंड करना है कन्वे, तो क्या मैं अलविदा ले सकता हूँ सभी आपसे? ये नंबर ऐड कर ले मेरे यहाँ। जी सर, क्वेश्चन सारे हो गए हैं कंप्लीट। 81
Still कुछ होगा तो क्वेश्चन मैंने नंबर भी मेंशन किया है, मेंबर्स कैन मैसेज मी, आई विल ऑलवेज रेडी टू ऑन द queries also. जी देवेश जी, थैंक यू सर, थैंक यू देवेश जी फॉर सच ए वंडरफुल सेशन on this 7 MSME and Companies Act. We are really thankful to have. Thank you ji. Now I request C.S. Subhash Kambojia, our very senior member, is with us. So I request Subhash Kambojia for a formal vote of thanks and conclude the meeting, sir. Subhash ji, please. सुभाष जी आप हैं? सुभाष कंबोज जी नहीं सुन नहीं रहे। सुभाष जी सिग्नल ब्रेक हो गया लगता है। चलो ना आई रिक्वेस्ट भैया उनकी फोटो लगी हुई है, वो है नहीं वहाँ पे। अच्छा फोटो लगा के छोड़ दिया है। हाँ हाँ। तो राजेश सलूजा जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सर formal vote of thanks and conclude the meeting, sir. Thank you, Rakesh ji, for giving me this opportunity. It was actually a wonderful presentation, Devesh ji. I have also heard you a couple of times previously also, but and every time you actually rock. The way you explain it's very easy and easy to grasp. I always run away from Companies Act, but today when I was sitting, I could grasp a lot of things which I was not aware of. Thank you so much. Special thanks to all the participants. I see that till the end, all the around 44 participants were there who were regularly on. So that means that is how good you were, Devesh ji. That everybody was totally focused on the program and they very carefully ran the program. Thank you all the panelists, and we would love to hear you again, Devesh ji. Thank you for such a wonderful presentation. Thank you. Thank you. Sir, one more request I want to do. Yes. I request all the members to please renew your membership for 2021. Sir, study circle has a requirement, some funds also. So it is my humble request to all the members to please renew their membership for 2021. And I also request the member to please suggest a topic also, so that we can take in your next meetings and important topics which are for your practical use and which are useful for your practical day-to-day practice. So please suggest your suggestion also, so that we can take up that topics in your next meetings. Thank you, sir. Thank you all the participants, and thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you.